سبحان الله وبحمده وخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهني في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. تفسیر سورہ یوسف رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہو گئے. احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خوبصورت قصہ جاری ہے. اور اولاد میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طویل جد و جہد اور آزمائشوں کے دور کے بعد اب جیل خانے سے نجات اور رہائی کے بعد جو مصر کا حکمران ہے پہلے ان کا مقرر بنا دیا. اور اللہ جس کام کا ارادہ کیے ہوئے تھا، جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر اور حکم تھا، اس کے اذن سے مختلف وسائل اور اسباب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد اب مصر کی حکومت فرمانروائی عطا فرما دی. اور یہی وہ کام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی، اور یہی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طویل رستہ اور ذریعہ اڈاپٹ کروایا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اب نبی بھی ہیں. دین اسلام کی تعلیم اور وحی الہی ان تک پہنچائی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ان کو مصر کی حکومت اور فرمانروائی سے بھی نواز دیا گیا ہے تاکہ دین اسلام کی سربلندی اور حفاظ کا معاملہ اختیار کر سکے. اب ہوا کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران ہیں تو اسی حکمرانی ہی کے دور میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس مصر پہنچ گئے. بھائی فلسطین سے مصر کیوں آئے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر خاص وہاں سے سفر کر کے اتنا طویل سفر طے کر کے وہ خاص مصر ہی کیوں آئے؟ اور پھر مصر میں بھی حاکم وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کل کے سبق کے ساتھ اس کو دیکھ لیجیے. ہوا کیا تھا کہ جب بادشاہ وقت نے مصر کے بادشاہ نے وہ خواب دیکھا تھا اور وہ شاہی پرستانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کا سوال پوچھنے گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدا کا علم کی بنیاد پر اس خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی. مستقبل میں رونما ہونے والے مصر کے اندر جو برے حال اور بدحالی کا حال رونما ہونے والا تھا اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی. اور پھر صرف پیشن گوئی نہیں کی تھی، اپنے دنیاوی فن، ہنر، فہم اور فراست سے اس بدحالی سے بچنے کے لیے لائی عمل طریقہ اور منصوبہ بتایا اور سکھایا بھی تھا. یہ منصوبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تجویز کر دیا تھا حاکم وقت، اور اس بڑے ہی فراست والے اور حکمت والے منصوبے کو سن کر حاکم وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کر دیا اور یہ وہ حکمران بن گئے. اب جب وہ حکمران بن گئے اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی تو وہ منصوبہ کو پلاننگ کو لائے عمل جس کی تجویز وہ پہلے اس دور کے بادشاہ کو دے رہے تھے، وہی منصوبہ انہوں نے خود مصر کے لوگوں کو قحط سالی سے بچانے کے لیے اپنا لیا.
حکمران تھے، اچھے حکمران ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں اچھے حکمران؟ علیم، امین، حفیظ۔ یہ رویہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو ایک تھا اس کو پوری امانت سے اپنے قوم کے لیے، اس ریاست کے فائدے کے لیے استعمال بھی کیا، اس علم میں کسی کمی کوتاہی اور خیانت کا ارتکاب بھی نہیں کیا، اور پوری حفاظت سے اصلاح عمل کو بروئے کار بھی لائے، اور پھر اپنی ریاست کے ماتحتوں اور اپنے محکوموں کے رزق ان کے کھانے، ان کے معاملات کی حفاظت بھی کی۔ یہ منصوبہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سجیسٹ کیا تھا، خود بذات خود اس کو اپنے علاقے میں نافذ بھی کیا، مصر نے اس منصوبے کو لانچ بھی کیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک امین، حفیظ، علیم حکمران نے اپنی رعایا اور اپنے محبوبوں کی حفاظت اور ان کی بہتری کے لیے اتنی خیرخواہی اور خلوص سے جب یہ منصوبہ کیری آؤٹ کیا تو اللہ نے کتنی برکت دی۔ صرف مصر کے لوگ پورے گرد و پیش کے علاقوں میں قحط ساری تھے، بارشیں رک گئی تھی، خشک سالی مسلط ہو گئی تھی، اور مصر کے علاقے پر نہیں تھی، ایک وائڈ اسپریڈ خشک سالی تھی، بہت دور دراز، مصر کے دور دراز کے علاقوں میں بھی خشک سالی تھی، لیکن ہر ہی خشک سالی والا علاقہ قحط سالی سے دوچار ہو گیا۔ صرف اور صرف مصر کا علاقہ، سرزمین مصر جس کے اندر ایک علیم، حفیظ اور امین حکمران تھا، صرف ایک واحد خطہ اور واحد علاقہ تھا جو قحط سالی سے بچا رہا۔ یہاں پر قحط خشک سالی تو آئی تھی، لیکن اچھے اور امین حکمران کے اچھے منصوبے اور اعمال اور رویوں کی بنیاد پر یہ علاقہ خشک سالی سے اسٹرائک اور ہٹ ہونے کے باوجود قحط سالی سے بچا رہا۔ یہاں لوگ آسودہ بھی تھے، فقر و فاقہ بھی نہیں تھا، رزق کی تنگی بھی نہیں تھی، اناج گیہوں موجود بھی تھا، اور اتنا وافر اور اتنا کھلا تھا کہ صرف مصر کے لوگ خود ہی نہیں کھا رہے تھے، بلکہ دور دراز کے لوگوں کو بھی اس بستی میں سے رزق فراہم کیا جا رہا۔ دور دراز کے علاقے جو خشک سالی سے اسٹرکن تھے، جن کے اندر قحط سالیاں تھیں، ان قحط سالی والے لوگ جو ہیں وہ مصر سے آ کے غلہ اور علاج لے کے جا رہے ہیں۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایس پتہ چل رہا ہے، برکتیں پتہ چل رہی ہیں، امانیتیں پتہ چل رہی ہیں ان حکمرانوں کی جو کون سی صفات سے متصف ہے؟ امین، حفیظ اور علیم، جن خطوں کو، جن بستیوں کو، جن ریاستوں، جن قوموں کو ایسے حکمران پہچانے وہ نہ فقر و فاقہ کا شکار ہوتی ہیں، نہ ہی تنگ دستی کا شکار ہوتی ہیں، نہ ہی خوف، ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہوتی ہے۔ خود بھی مضبوط رہتی ہے، خود بھی باعزت ہوتی ہے، اور دوسری ریاستوں کی حفاظت، مضبوطی اور معاونت کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی ملکی سطح کا محاسبہ اور اس کو کھنگالیں تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر آج ہم اپنی ریاست میں دیکھیں اور پاکستان کی سرزمین کا جائزہ لیں تو آپ سب اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زرخیز زمینوں سے نوازا ہے، بہت زرخیز زمین ہے، خاص طور پہ پنجاب کی زمین کہ یہ ٹکڑا یہ دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہے، بڑے محنتی، بڑے جاں پشاں کسانوں سے بھی نوازا ہے، بڑے صاحب فن اور صاحب ہنر کسانوں سے اور دہقانوں سے نوازا ہے، نہروں سے نوازا ہے، 5 دریاؤں کی زمین ہے، بہترین آبپاشی کا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، فصلوں کے لیے، اناج اور گندم اور گیہوں پیدا کرنے کے لیے بہترین موزوں حالات ہمارے خطے میں اویلیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر ہماری گیہوں کی فصل کٹتی ہے،
गंदम और गेहूं की फसल कटती है, मेल और झूठ नहीं निकलता, और हमारे हुक्मरान जो है वो गैर अक़वाम से और हमारी दुश्मन अक़वाम से गंदम और गेहूं मांग देती है, कशकोटी करते रहते हैं। वजह क्या है? अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। कि वही नाराज़गी की अलामत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे किसी कौम पर नाराज़गी की अलामत है क्या है? तो किसी कौम पर जब गज़बनाक होता है, तेरा अज़ाब किसी कौम पर आता है, तो क्या अलामत है? कैसे पता चले अक़वाम को कि हमारा रब गज़बनाक है, ये हमारे रब के अज़ाब के निशान है। आपने फरमाया था मेरी किसी कौम पर नाराज़गी, रसूल सुब्हानहू तआला ने फरमाया था मेरी किसी कौम पर नाराज़गी अज़ाब की 4 अलामतें हैं। जब उनकी फसलें उग रही होती हैं तो मैं बारिशें रोक देता हूँ, जब उनकी फसलें पक जाती है, उग जाती है, खड़ी हो जाती है, तो मैं बारिशें भेज देता हूँ। क्योंकि बारिशों का आना जाना किसानों और दहकानों की मर्जी और हुक्म से नहीं है, रिज़्क़िल्लाह है ना। फिर उनके माल, उस कौम के लोगों के माल मैं बखीलों और हरीसों के हवाले कर देता, उनकी हुकूमतें नालायकों, नाअहल और बदतरीन लोगों के हवाले कर देता हूँ। जो ये सारी ही नाराज़गी, रब की नाराज़गी की ये सारी अलामतें नजर आती हैं। इस इलाके के हुक्मरान बदतरीन हो जाए, नालायक हो जाए, नाअहल हो जाए, तो उसके ऊपर रिज़्क़ की तंगियां मुसल्लत हो जाया करती। आज हमारी कितनी सोना उगलने वाली जमीन जो जिन पर खेतियां लहलहाया करती थी कुछ साल पहले, आज गवर्नमेंट पॉलिसीज, हुक्मरानों की बुरी स्ट्रैटेजीज या किसान को बीज नहीं मिलते, बीज आने नस्ल के नहीं होते, फिर किसानों को किसी को खाद नहीं मिलती, किसी को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और स्प्रेज नहीं मिलते, बर वक्त अच्छी चीजें नहीं मिलती, हर अगर मिले तो वो मिलावट वाली होती है, वो नाकिस होती है। और अगर सब कुछ भी मुयस्सर आ जाता है, कुछ किसानों को फसलें कट जाती हैं, गेहूं गंदम निकल जाता है, तो उसके बाद वो गेहूं गंदम हुक्मरानों की बुरी पॉलिसीज और गैर महफूज तरीकों की वजह से वो गेहूं गंदम वो अनाज स्मगल हो जाता है, फिर चोर बाजारी हो जाती है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है। ये सब इंसानी ये पकड़ो फाका इस ज़मीन के ऊपर अज़ाब इलाही की निशानी है, और ये सिर्फ बुरे हुक्मरानों की वजह से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अच्छे हुक्मरानों की पहचान अता फरमा दे। अल्लाह हमें इस बस्ती के लोगों को ये यकीन दिलाने और ये बावर कराने की कोशिश करने वाला बना दे कि हमारे मसाइल का हल मेरे पास इस्लाम में है। हमारे परेशानियों, हमारे दुखों, हमारे मसाइल का मदावा ऐसे हुक्मरानों में है जो हिफाज़ इस्लाम करें, जो अमीन हो, जो हफीज हो, जो अलीम हो। और अल्लाह के नज़र की निशानियाँ दूर भी तभी होगी जब हिफाज़ इस्लाम की खेतियाँ सरज़मीन पर फैलाने। बहरहाल वो लोग आ गए क्योंकि यहाँ से गल्ला जो है वो मिल रहा था, ये गल्ला लेने आए थे, क्योंकि इनके इलाके में जहाँ पर ये भाई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो इलाका जहाँ पर मौजूद था, वहाँ पे गहन शादी थी, ये लोग गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। फिर क्या हुआ? उसने उन्हें पहचान लिया। किसने? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचाना था, क्योंकि जाहिर है वो जब आए थे, एक तो भाई थे, भाइयों को पहचान लिया, और फिर वो 10 के 10 इकट्ठे थे, और फिर जाहिर है उनसे उनका इलाका भी पूछा होगा, उनसे पूछा होगा आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, उनके नाम पूछे होंगे, इलाका पूछा होगा, बाप का नाम पूछा होगा, और फिर इतना बड़ा टोला, नाश्ता वस्फा 10 भाइयों का चलता, किसी एक को ना पहचानते, 2 को ना पहचानते, 10 के 10 इकट्ठे आते थे, पहचानना तो था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, मगर वो उससे नाआशना थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, बरादराने यूसुफ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? उन्होंने पहचान लिया, इन्होंने नहीं पहचाना। मुख्तलिफ वजूहात हैं। आप देखिए कि एक वजह तो ये है कि जब
तो कुएं में फेंके जाने का मामला हुआ था ना, तो भाई बड़े थे, वो बड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मैंने कितनी बताई, 17 साल की उम्र थी, और अब उनकी उम्र कितनी होगी, कम से कम 30 साल। मैंने आपको बताया था ना कि आप उम्र कितनी उम्र में गई थी, 30 साल। तो 70 to 30 कितने साल हैं, और ये वो साल हैं जब एक जवान बच्चे की शक्ल में, उसकी अपीयरेंस में भला चंगा फर्क पैदा हो जाता है। दाढ़ी उगती है, बारिश हो गए होंगे, शक्ल में, गुलिये में, जिसामत में, कद में, बहुत सी चीज़ों में फर्क आ जाता है। अगर आप देखें ना कि इतना एक तवील सफर दुश्वारियों का करके आए हैं, पता नहीं गुलिये में, हैयत में, साख्त में, लिबास में कुछ फर्क होगा, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से वो पहचान नहीं पाए। अभी सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने तो अपने हाथ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था ना, तो उनका क्या ख्याल था, कुएं में फेंक दिया हमारा काम बचे होंगे। उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कुएं में फेंके जाने वाला, अंधे कुएं में, डिजर्टेड कुएं में, एक शहर के अंदर एक डिजर्टेड कुएं में फेंके जाने वाला भाई का चली गया। तो किसी की कूद फरियाद वहां पहुंची होगी और किसने बचाया होगा, उनका तो ख्याल था ना कहीं कोई मर भाग गए होंगे। और फिर अगर उनका ये भी उन्होंने सोच लिया होता कि बच गए होंगे, तो ये तो कहीं वो दूर दूर से नहीं सोच सकते थे कि कुएं में फेंका जाने वाला, फिर निकाला जाने वाला मिस्र का हुक्मरान। ये तो वो वाइडेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते थे, वो कभी दूर दूर की ये कोड़ियां नहीं छोड़ सकते थे। ये भी कभी इंसानी सोच के मुताबिक नहीं हुआ करता अल्लाह का मामला। अल्लाह का मामला अल्लाह की शान के मुताबिक होता है। इंसान इस चीज़ का शऊर भी नहीं रखते और इस चीज़ का इत्मीनान भी नहीं कर सकते वो क्या क्या करता। तो लिहाजा इस वजह से ना उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था। लेकिन आप देखें इतनी देर के बाद अपने पर जुल्म करने वाले, जबर करने वाले, इतनी ज़्यादती करने वाले ये वही भाई हैं जिनकी वजह से ये आजमाइशों और तकलीफों का, ये तूफान का सिलसिला आगाज किसकी वजह से हुआ। इतनी अनगिनत तकलीफें और आजमाइशें आई थी, लेकिन असल वजह कौन बने थे, ट्रिगर किसने किया था, इन सारे भाइयों। ये सारी दास्ताने गम, ये सारे तूफान, इसकी वजह कौन थी, ये सारे भाई। इन जालिमों को इतने सालों बाद मिलने के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया कैसा है। इस सिचुएशन में किसी आम शख्स का रवैया देखें कैसा होगा, क्या करता। एक आम शख्स अगर इस हाल में होता और हाकिम वक्त होता और उसके कत्ल करने की साजिश करने वाले जालिम जाबिर भाई उसके सामने आते, तो वो क्या क्या गाली गलौज, मार पीट, लान तान कैद करवा देते, मरवाया जाता। हाकिम है कुछ भी कर सकते, कैद करवा दिए जाते, पाबंदी सरासर करवा देते, जंजीरों में जकड़ देते, खड़े खड़े मरवा देते, सर उड़वा दिया, इनको टूरे देते। लेकिन नबी है, मोहसिन है, ये तो मैदान है, मोहसिन की सिफत फिर नजर आ लगातार सारी सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो रुख मोहसिन का रुख। ये सूरत और इसमें इन अंबिया की सुन्नत के नमूने तफसीर हैं। मोहसिनीन की वो कुरान की आयत के हवाले से हाज़िरीन और वाइज़ाफ़ीन अल्लाह सुब्हानहु व युहिब्बुल मोहसिनीन, उसे वो पी गए। मुझे बताएं क्या ख्याल लगा कि पी नहीं गए। जब वो आयत आई थी ना, मैंने आपको तब बताया था कि ये आयत ऐसे लगती है कि देख के लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बशरी तौर पर गुस्सा आने के बाद उसको ऐसे पी जाना कि देखो पता ही ना चले मुझे गुस्सा आए, अभी उसके बाद उसको माफ कर देना, फिर उसके बाद उसे बढ़ बढ़ के एहसान करना। तब न्याय पड़ी फिर लगता था कि ये मुमकिन ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैंने वहाँ पे भी आपको मिसालें दी थी और तभी आपको बताया था कि मैं सूरह यूसुफ में भी सारे बार बार समझाऊंगी कि देखिए हर स्टेज पर ये एहसान कर रहे हैं, हर स्टेज पर ये मौसम कर रहे हैं। उन भाइयों के खिलाफ गुस्सा तो आया होगा, ये फितरी चीज है, उसका सब कोई जानता है। लेकिन उस गुस्से को कैसे किया, भाइयों को पता चला कि गुस्सा है, बेजुबान खाए, भाइयों को पता ही नहीं चला था क्या गुस्सा। ये गुस्से का पहाड़ उमड़ रहा है, लेकिन ठीक है, सदा नजर नहीं आया, माफ कर दिया। और माफ करने
کرنے کے بعد احسان کر دیا، معاف کر کے واپس لوٹا دیتے گلہ دیے بغیر تو بھی ٹھیک تھا، لیکن احسان کیا ہے؟ ان کا حق تھا کہ گلہ دیے جاتے، بتائیں ان کا حق تھا کہ گلہ دیے جاتے؟ یہ فرض تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے قتل کرنے کی سازش کرنے والوں کو گلہ دے کر لوٹاتے؟ نہیں، یہ محسن ہے اپنے حق سے، اپنے فرض سے بڑھ کے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے کر حضرت کی نظر کی تھی، تو لہٰذا کیا کیا؟ ان کو گلہ دے دیا۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتے کے بھائی کو میرے پاس لانا۔ کیسے پتہ چلا تھا؟ ظاہر ہے اس سے پوچھا ہوگا بھائی کتنے ہیں، تم کتنے ہو، پیچھے کون سا رہے، تم سارے آئے ہو، کون کون ہے؟ یونان تو پوچھی ہوگی، خود سے خود نہیں تھا، خود سے وہ کہتے تو پھر تو پکڑے جاتے ہیں نا، آپ کو کیسے پتہ؟ ان سے پوچھا ہوگا کتنے بھائی ہو، پیچھے کون ہے، گھر میں کون ہے؟ وہ ساری یونان پوچھی تو ساتھ ہی کہنے لگی اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ بس اوقات میں اس اسٹیج پہ آ کے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کی حالت کا احساس بہت تیز چھپا ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انبیاء کے قصے اور ان کے زمانے میں ہوئی سی داستان جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ انبیاء کو تو شاید غم اس طرح ہوتا ہی نہیں تھا، ان کو تو دکھ شاید آتا ہی نہیں تھا، ان کے رویے اتنا ضبط نفس ان کا نظر آتا ہے، ان کی سنتوں اور ان کے رویوں، اور کسی بھی نبی کا جب واقعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اتنا ضبط لسان، اتنا ضبط نفس، اتنا صبر اور اتنا تحمل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو تو شاید کوئی فیلنگ نہیں تھی، ان کو تو کھوتا ہی نہیں تھا، شاید یہ اداس ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہاں کے پتہ چلتا ہے اداس تھی، مس کرتے تھے، خواہش تھی، وہ یاد آتی تھی، لگے رہتا کہ کتنے اداس ہو گئے کہ اس نے سب سے پتہ کتنی محبت اور کتنے بیلنسڈ اور حکمت کے طریقے سے کہتے ہیں اچھا اپنے بھائی کو میرے پاس ملنے کی خواہش تھی، اداسی تھی، دل میں تڑپ تھی، جدائی کا دکھ اور غم ان کو بھی ستاتا تھا، لیکن اس کے باوجود صبر ہے، تحمل ہے، اس جدائی کی وجہ سے حالات کو بھی اوپر غالب نہیں کر رہے، ناامید نہیں ہو رہے، مایوس نہیں ہو رہے۔ اور پھر یہ انشور کرنے کے لیے نا کہ وہ بھائی کو ضرور ہی لائے، کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیکھتا ہوں، ان کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں گھر بھر کے دے رہا ہوں تو دیکھو میں کیسے گھر بھر کے دیکھتا ہوں۔ جیسے کہ انبیاء کی صفت محسنوں کی ایک سنت اور طریقہ کیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو بھر بھر کے دیکھتے ہیں، دیکھتے وقت حرص نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، دیکھ کی تنگی کا شکار نہیں ہو جاتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں تنگی نہیں ہے، دیکھتے ہیں تو بھر بھر کے دیکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی انبیاء کی سنت کیا ہے؟ یہ کس کو دے رہے ہیں؟ دوسری قوم کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو دے رہے ہیں، اپنے پہ ظلم کرنے والوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تعلقات کی کون سی قسم ہے؟ مواسات۔ میں آپ کو بتایا تھا انسانی تعلقات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: معاملات، مدارات، مواسات اور محبت، دل کی محبت، موالات۔ پہلے 3 قسم کے تعلقات ایک مسلمان کو، مومن کو ہر ایک سے وہ رکھ سکتا نہیں ہے، اس نے رکھنے ہیں۔ معاملات بھی اچھے کرتے ہیں، مدارات بھی کرتی ہیں اور مواسات بھی کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رویے سے مواسات کا بہترین پیغام دیتا ہے۔ پہلے کافر، فاسق، فاجر قوم کی مواسات کا رویہ کر کے ان کو گائیڈ کیا اور ان کو قحط سالی کے اثرات سے بچایا۔ اب مصر کے حکمران ہیں، کسی دوسری ریاست سے لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو گھر گھر کے پیمانے ان کو غلے کے دے رہے ہیں کہ بنائیوں کو اپنی ریاست کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ان کی تنگیوں، ان کی دشواریوں، ان کی تکلیفوں کو کاٹنے کے لیے معاونت کر رہے ہیں۔ مواسات کا بہترین نمونہ ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوں میں بہت مواسط ہے۔ وہاں پہ بھی کیا ہوا تھا؟ مشرکین مکہ پر جب قحط سالی سے دوچار ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खल्दा भेजकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की तरह का मवासात का नमूना कायम किया। वही मुशरिकीन मक्का जिन्होंने बरादरान यूसुफ का तरीका इख्तियार किया था। बरादरान यूसुफ को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं मवासात का नमूना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल की साजिश करने वाले मुशरिकीन मक्का को कहत में अल्लाह भेजते हैं मवासात का नमूना। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सलामा बिन मुसाद ने जब ऐलान किया था कि मैं उनको वतन नहीं दूंगा तो आपने उनको भी मना फरमाया। तो लिहाजा मुसलमानों के लिए मवासात का हुक्म और मवासात से रुकने के लिए आपकी मनाही का हुक्म मौजूद है। तो अंबिया ने अपने रवैये में हुस्न सलूक, खैर खाही, सब नेक मखलूक के साथ ही खालिसार इखलास और खुशादा ज़िंदगी का जिम्मा और मामला जो है वो इख्तियार किया। और फिर क्या किया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगला तरीका, और देखो मैं क्या हूँ, मैं कैसा अच्छा मेहमान नवाज। ये कौन सा ताल्लुक का तरीका है? मदारात। तो अंबिया ने मवासात भी सबके साथ की और मदारात भी सबके साथ। मेरे और आपके लिए इन दोनों मोहसिन अंबिया के नमूने में बेहतरीन नमूना है मवासात का और मदारात का। फिर क्या सुन, मेहमान नवाजी अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफत है। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए पहले तो टेंट किया लाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को वो ज़रूरी लाए, अपनी मोहब्बत, अपनी खुशामदी याद ज़रूरी। देखो मैं कितना देता हूँ, भाई को लाऊंगी मैं उसको भी दूंगा, और देखो मैं कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करता हूँ। ये अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहे, अपने को मियाँ मिट्टू नहीं बन रहे, उनको अपनी कुछ आदत सीखते हैं इसलिए बता रहे ताकि वो वापस अपने भाई को लेकर आए। अभी साथ एक पॉजिटिव तरीका और दूसरा धमकी का तरीका, क्योंकि आपको पता है ना कोई शख्स मोहब्बत से मानता है और कोई धमकी और डराने से मानता है, दोनों तरीके अपना लिए। अगर तुम नहीं लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वादा नहीं है, बल्कि तो मेरे करीब भी ना पड़ा। औलाद की तरबियत में ना दोनों तरीके अपना लिया गए। जैसे तो फिर माँ को पता होता है कौन सा बच्चा प्यार से मानेगा, कौन सा बच्चा डर और डांट से मानेगा, लेकिन बच्चा होता पता नहीं होता कौन सा कैसे रिएक्ट कर जाएगा। दोनों तरीके अपना लीजिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वादा नहीं और मेरे करीब भी ना आना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहिब उसे भेजने पर राज़ी हो जाए, और ऐसा हम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को इशारा किया, उन लोगों ने गले की इवज़ जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? ये हर ये तरीका अपना रहे हैं, हर ये लाए पर अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे ये चीज़ पक्की हो जाए कि वो भाई वापस मेरी अमीन हज़रत मेरी अमीन को साथ जरूर है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं माननवाज हूँ, मैं बहुत देता हूँ। अच्छा नहीं लाओगे ना, बस बिल्कुल ना आना, मेरे को नहीं देती। आप फिर और टेम्प्ट करने के लिए देखो ये जो उन्होंने हमें थोड़ी सी रकम थोड़ी सी पूंजी दी है ना, इसको भी अंदर वहाँ जाएंगे, अपनी पूंजी वापस पाएंगे, फिर वापस आने की तरफ माइल हो जाएंगे। एहसान करते चले जा रहे हैं, क्योंकि एहसान लोगों को माइल और कायल करने में कामयाब होता है। तो चुपके से उनके सामान में रख दो। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुन्नीत पर किया कि घर पहुंच के वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे और इस प्रयासी का एहसान मंद होंगे और अजीब नहीं कि फिर वो पढ़ते। जब वो अपने बाप के पास गए, यानी अभी बाप के पास गए हैं, सामान खोलने से पहले ही बातें शुरू कर दी है। हाँ, तो उन्होंने कहा अब्बा जान अल्लाह हमको बदला देने से इनकार कर दिया, ठोस देंगे तो शुरू से बात करते हैं, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम बदला जाए। तो हमें तो इनकार कर दिया, बदला देना तो भेजो इसको, और इसकी हिफाजत के हाथ से अपने दार हैं। बाप ने क्या कहना होता है, कहने का वालिद ने कहा क्या मैं उसके मामले में भी तुम पर वैसे ही भरोसा करूं जैसे इससे पहले उसके भाई के मामले में तुम पर कर चुका। याद रखिएगा, एक तरफ की बेईमानी, एक दफा का धोखा, एक दफा का फ्रॉड हमेशा के लिए उस शख्स के एतमाद को खत्म कर देने का बायस बनता है कि पहले भी तेरे साथ बेईमानी, धोखा, फ्रॉड, झूठ कर चुके हो, हमें वैसे ही करो। अभी क्या कहने लगे? अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों का रवैया यही होते हैं। वो क्या कहने लगे? मैं तुम पर भरोसा करूं जैसे तुमने वैसे
नहीं, मैं उसकी हिफाजत के लिए तुम पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही कहने लगे अल्लाह खैरुन हाफिज़। असल में मैं तो हिफाजत करने की अपने बेटे की कोशिश ही कर सकता हूँ। पहले भी बेटे की मैंने हिफाजत की कोशिश की थी, मैं हिफाजत कर नहीं सका। इस बेटे की मैं हिफाजत करके तुम्हारे पास भेजना नहीं चाहता, मैं हिफाजत की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल हिफाजत कौन कर सकता है? मैं से बेहतरीन हिफाजत ना अल्लाह ही कर सकता है। और वो हिफाजत करने वाला कैसा है? वाहुवा अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, रहम करने वाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कातिल का तरीक़ाकार औलाद की तरबियत में मुख्तलिफ मिजाजी से जारी है। कौन सा तरीका? हर मौके पर, हर मोड़ पर, हर वाक़े और सिचुएशन में रब का तारुफ करवाते चले जा रहे। ऐसी औलादें जिन्होंने इतनी बदमाशी, इतना झूठ, इतना धोखा, इतना फ्रॉड, इतने बड़े कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया, उन औलादों से भी मायूस नहीं हो रहे हैं, नाउमीद नहीं हो रहे हैं। इस औलाद को लगातार अपने लिए सदका जारिया बनाने और अपने आप को 5 बनने से बचाने के लिए अल्लाह का तारीफ करवा रहे हैं। असूल मरते दम तक पूरी कोशिश, पूरी सही खलूस के साथ औलाद की इस्लाह खैरखाही के साथ करते रहिए। बरकत डालना अल्लाह के ज़िम्मे है, इस्लाह की कोशिश करना वालिदैन के ज़िम्मे है। फिर दूसरी बात क्या पता चल रही है? औलादों की तालीम और तरबियत में अल्लाह की पहचान करवाना एक निहायत इफेक्टिव और मजबूत तरीका है। ये अंबिया का तरीका है। और फिर अल्लाह का तारुफ, दीन की तालीम बाकायदा बिठाकर नहीं, चाहे बताए उठते फिरते चलते फिरते बातों में इनडायरेक्टली पैसिवली करवाई जाएगी। और फिर तरबियत क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल की ज़ाती अमल से तरबियत भी करें। सिर्फ ज़बानी औलादों की तरबियत नहीं हो रही, अपने अमल से भी औलाद की तरबियत करें। कौन से अमल का नमूना दे रहे? अल्लाहु खैरुन हाफिज़न, मैं अल्लाह पे भरोसा करता। तवक्कुल की तरबियत अपने अमली नमूने से, अपने रवैये से। औलाद की तरबियत ज़बानी दरूस से, सिर्फ तालीम से नहीं, वालिदैन औलाद की तरबियत अपने ज़ाती अमली नमूने से भी करते हैं और करनी भी है। ये भी अंबिया का तरीका है। फिर एक और उसूल क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु खैरुन हाफिज़न, गोया वो अल्लाह पर, उस हफीज रब पर तवक्कुल करते हैं हिफाजत के लिए। लेकिन तवक्कुल कैसे कर रहे हैं? क्या खुद हिफाजत की कोशिश नहीं कर रहे? क्या खुद हिफाजत के तरीके सोच नहीं रहे? क्या खुद तवक्कुल नहीं कर रहे हिफाजत के लिए? क्या हिफाजत के तरीके सोचकर उसको अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे? तवक्कुल का तरीका क्या होता है? तवक्कुल का तरीका ये होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने से पहले सोचा जाए, समझा जाए, प्लान किया जाए, मेहनत सही एफर्ट की जाए, जितने की कुदरत है, जितने की इस्तिताअत है। और ये सब कुछ करने के बाद उस बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ रब पर तवक्कुल और भरोसा करके राज़ी बरसा रहा जाए। ये है तवक्कुल का तरीका। अच्छा जी, जब उन्होंने सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया। ये देख कर वो पुकार उठे, अब्बा जान हमें और ये तो थ्रेट जा रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तो तासुर चाहते थे, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए? देखिए ये हमारा सामान हमें वापस दे दिया गया है, बस अब हम जाएंगे, अपने औलाद के लिए रसद लाएंगे और की हिफाजत करेंगे और एक बार शुक्र ज्यादा और भी लेकर आएंगे और इतने बड़े हिसाब आसानी से हो जाए। मैंने आपको बताया था ना कि लोग जब दूर दराज से आते थे मिस्र के लोगों के पास गल्ला लेने के लिए, तो चूंकि गले की कमी थी ना, तो गल्ला बहुत थोड़ा था, तो मिस्र के लोग जब बाहर से आने वाले लोगों को गल्ला देते थे तो फी कस दिया जाता पर हेड, एक फर्द के हिसाब से। जैसे राशन सिस्टम होता है, राशन सिस्टम होता है, उसमें राशन कार्ड जो है वो इशू कर दिए जाते हैं। हर शख्स अपने घराने के अफराद का नंबर लिख देता है कि जी हमारे घराने के 5 अफराद हैं, और फिर उन राशनिंग सिस्टम से ये फिक्स होता है कि एक फर्द को 1 किलो चीनी महीने की या 2 किलो चीनी चाहिए, तो 5
किलो चीनी लेके चला जाता है, तो जिसके अखराज जितने होते हैं उसको चीनी राशन उतना ज़्यादा मिलता है। तो इस हवाले से यही उन्होंने कहा कि वहाँ पे राशन का सिस्टम है, पर हेड टीकस को गला मिलता है, अगर हम एक भाई और लेके जाएंगे तो हमें गला भी और मिल जाएगा। और बस इतनी छोटी सी बात के साथ कि भाई को लेके जाने से तुम्हें गला मिल जाएगा, तो लिहाजा खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। अब्बा ने भी जवाब कोई नहीं दिया, बल्कि बहस करके चले जा रहे हैं। उनके बाप ने कहा मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे सामने नहीं भेजूंगा, तब तक किसका कहा था वो हाफिज़न है, वल्लाहु हाफिज़न, कहने लगे मैं नहीं भेजूंगा जब तक तुम उस हफीज रब के नाम का मुझे वादा ना दे दो कि उसे मेरे पास जरूर ही वापस लेके आओगे, इल्ला कि तुम घेर ही लिए जाओ। यानी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी उसका तस्करा कर दिया, लेकिन तुम घेर ही लिए जाओ तो फिर तुम कादिर नहीं होगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास वापस लाने की कुदरत हुई तो हद इम्कान कोशिश करके बात करो उसको वापस ले आओ। जब उन्होंने उसको अपने पैमान अपने वादे पैमान दे दिए तो उसने कहा देखो हमारे इस कौल पर अल्लाह निगरान, बातों पर मुआहिदों पर किसको निगरान निगरान बनाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कसम खाते भी अल्लाह की है और मुआहिदों पर निगरान भी मोमिन अल्लाह ही को बनाता है। फिर उसने कहा मेरे बच्चों, मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। पहला असूल डोंट बताया था तो डू साथ ही बता दिया। एक दरवाजे से ना जाना तो फिर क्या करें, बहुत से दरवाजों से जाना। अल्लाह का तरीका भी यही है, अंबिया की तालीम और दावत का तरीका भी है, जहाँ नहीं दी जाती है वहाँ अमल साथ ही बता दिया जाता है। अपनी दावत, अपनी तबलीग और कुरान की तालीम की महफिलों में जहाँ आप कुरान और हदीस का एक डोंट बताएं, एक नहीं बताएं, तो क्या करें, अमल साथ ही बता दिया करें। दूसरी बात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को ये 10 बेटे हज़रत बिन्यामीन के साथ अब 11 बन रहे हैं, ये अब वापस मिस्र पलटने वाले हैं। वालिद को कुछ फिक्र, कुछ परेशानी, कुछ ख्यालात की बुनियाद पर उनके दिल में खटक रही है। उस परेशानी की बुनियाद पर उन्होंने बेटों को मशवरा दिया कि तुम एक दरवाजे से ना दाखिल होना बल्कि पर दरवाजों से दाखिल हो। ये कौन से दरवाजे? आपको पता है कि पुराने ज़माने में कदीम दौर में क्या होता था? कदीम दौर में शहरों की हिफाजत के लिए शहरों के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें और मस्जिदें बना दी जाती। इतनी ऊंची दीवारें और इतनी ऊंची मस्जिदें होती थी कि दुश्मन जब आता था तो इन दीवारों को अबूर नहीं कर सकता, और इन दीवारों के अंदर मुहाफिज निगरान होते थे ताकि शहर के अंदर रहने वाले लोग महफूज हो जाए। आज भी अगर आप लाहौर की वर्ल्ड सिटी को जाके देखते हैं तो वहाँ पे वो दीवार और वो दरवाजे मौजूद हैं। तो ये जो ऊंची दीवार और मस्जिद उस शहर के ऑल अराउंड बना दी जाती थी, उस दीवार और मस्जिद के अंदर दरवाजे, क्योंकि जाहिर है अंदर के लोगों ने अंदर ही तो नहीं कहते रहना होता था कि दीवार के अंदर जो होते लोगों का सब अंदर ही है, दीवार के अंदर भी बाहर जा सके, उनके अंदर दरवाजे। तो लिहाजा ये उन्हीं दरवाजों का जिक्र है कि वो तो मिस्र के शहर में जब दाखिल हो गए तो एक ही दरवाजे से न घुसना, मुतफर्रिक दरवाजों से घुसना। असल में ऐसे याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में कौन सी फिक्र खटक रही? दो फिक्र, दो बातों की फिक्र है। एक फिक्र ये थी, उसका कहते थे ना अपने आप को, भाई हम तो इतना ऊंचा तगड़ा मजबूत किस्म का छत्ता है, इस बात पर तफक्कुर भी बहुत ज्यादा था ना। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यही फिक्र हुई कि मेरे खूबसूरत ऊंचे लंबे कदावर नौजवान 11 बेटे इकट्ठे एक दरवाजे से दाखिल हो गए तो कहीं किसी हासिल की नजर का शिकार ना हो जाए। बेटे बहुत बड़ा इनाम होते, हुस्न, जवानी, कद, ये सारी जसामत, ये भी बहुत बड़ी खूबसूरती और अल्लाह का इनाम होती है। तो ये सारी नेमतें या जब किसी में नजर आ जाए तो बस हासिलों को नजर हसद का मामला होता है। तो अपने बेटों को हासिलों की नजर से बचाने की फिक्र दरकार लाहक हुई। और दूसरी फिक्र क्या हुई? बाप है ना, अनाथों की फिक्र करना तो माँ बाप के लिए लाजिम होता है, तो उससे रहना। और कोई औलादों की लाइफ नहीं फिक्र करता है, ना सोचता है, ना खपता है, ना
ये वालिदैन माँ बाप ही होते हैं जो बैठते उठते हर वक्त अपने बच्चों के गम और फिक्रों में दो चार रहते हैं। बहरहाल दूसरा बात यह था कि उनको ये फिक्र लाहक हुई कि अगर एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो कहीं कोई डाकू, कोई राहज़न, कोई फसादी ना समझ लिया जाए। क्योंकि इस दौर में जब शहरों के अंदर कुछ डाकू, कोई राहज़न, कोई दुश्मन आते थे तो बड़े जवान ताकतमंद बनोमंद इकट्ठे थे, तुरंत दरवाजों से इकट्ठे घुस आते हमलावर होते थे। तो लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम को ये फिक्र लाहक हुई कि 11 ऊंचे लंबे कदावर जवान इकट्ठे 11 के 11 दाखिल हुए तो कोई मिस्र के लोग ये ना समझ ले कि हमारा वजह लूटने आए, कोई राहज़न या डकैतियां करने आए और ये फसादी और हसन चोर पकड़ के समझ के पकड़ ना लिए जाए। ये दो काम इनको दो चार हुए। तो इसलिए तकलीफ से, प्रॉब्लम से बचने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को एक अच्छी तजवीज़ और राय दी थी, मगर अल्लाह की मशीयत से मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जब मशवरा दे रहे थे तो सारी अपनी कुदरत, अपनी ताकत और अपनी सलाहियत और अपनी इस्तिताअत का अंदाजा था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सही प्लानिंग, फिक्र, गौर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बचा नहीं सकता हूँ। बचाने वाला कौन है? अल्लाहु खैरुन हाफिज़न, को तो कोई उसका तो तारुफ भी पिछले जुमले में करवा चुके थे। मैं बचा नहीं सकता क्योंकि उसके सिवा किसी पर किसी का नहीं चलता, उसी पर मैंने भी भरोसा किया है। और क्या करना है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का तरीका जारी है और बाद में अल्लाह की सिफात का तारुफ कौन है? वो हकीम है। हर चीज में अल्लाह के साथ रवैये का तारुफ। और फिर ज़बान से सिर्फ दरस नहीं दिया जा रहा कि उस पर भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो, मैं भी उसी पर भरोसा करता। अमली नमूना, ज़बान से रब का तारुफ, ज़बान से रब की अताअत के तरीके का तारुफ। और फिर तवक्कुल का तरीका किसी आयत से समझ आ रहा है, बार बार समझ आ रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं, वो तवक्कुल में से हैं, लेकिन तवक्कुल लगातार कैसे कर रहे हैं? अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, तकलीफ को, दुख को, गम को, परेशानी को, मुसीबत को टालने के लिए गौर और फिक्र भी करते हैं, सोच विचार भी करते हैं, ज़हन भी लड़ाते हैं, मंसूबे भी बनाते हैं, तरीके इख्तियार भी करते हैं, उस पर अमल करते और करवाते भी। याद रखिएगा, सोचना, गौर और फिक्र करना, प्लान करना या तकलीफ से बचने की कोशिश करना या खैर और बरकत को हासिल करने की मेहनत करना, ये अदम तवक्कुल का निशान नहीं है। कोई शख्स अगर तकलीफ से बचने के लिए, किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई वैक्सीन लगा देता है, कोई एंटीबायोटिक खा लेता है, किसी मरीज से दूर रहता है, तो ये अदम तवक्कुल नहीं है। बस सब कहते लोग कहते हैं उसको तो अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है, ये तो बहुत ही वहम करती है, ये तो बहुत ही, ये वहम करना, ये कोशिश करना, ये सोचना, उससे बचने की कोशिश करना, ये अदम तवक्कुल नहीं है, ये लैक ऑफ फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है। ये फितरी कोशिश है, ये करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए, प्लान भी करना चाहिए और फिक्र भी करना चाहिए, दिमाग भी लड़ाए। अभी जो दिमाग लड़ा के समझ आता है उसको तो हासिल करने और बचने की कोशिश अमली तौर पर कर, ये तवक्कुल के मुनाफी या खिलाफ नहीं है। हाँ, ये तवक्कुल के मुनाफी जरूर होगा कि अपनी कोशिश करने के बाद अल्लाह पर भरोसा न करना, अपनी सलाहियतों पर करना या अपने किसी दुनियावी सहारे पर भरोसा करना, और यहाँ अल्लाह पर भरोसा किए बगैर राजी का रज़ा न रहना, ये अदम तवक्कुल है। जैसे वो वाक़या आता है ना कि वो ऊँट बांधने वाला, ऊँट वाला आया था तो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि मेरे पास एक ऊँट है, मैं क्या करूँ? उसने सोचा, गौर किया, इसे बांधूं या ना बांधूं। अब इसने सवाल किया, आपने क्या बताया? अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना है तो उस ऊँट को बांध के भरोसा। बांधने के बावजूद, तेरी पूरी कोशिश, प्लानिंग, मेहनत के बावजूद अगर ये ऊँट चला गया तो फिर तवक्कुल करके राज़ी पर रज़ा रखना कि इसके जाने में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। लिहाजा ये तवक्कुल का तरीका है। अब इन्होंने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन होता क्या है? झोंक जाता है। और वाक़या में यही हुआ कि जब वो बाप की हदायत के मुताबिक अब औलाद कैसी होने लगी है, कुछ थोड़ी थोड़ी फर्मा बरदार होने लगी है, बाप की बातें मानने लगी है, अल्लाह
یہ तालीमात कुरान की जो हमें सिखाई जाती है, अगर इनके मुताबिक अपनी औलादों की तरबियत करेंगे ना नाकाम रहेंगे ना नामुराद होंगे। नरमी से, मोहब्बत से, खैरखानी से, दरगुजर से हैंडल की जाने वाली औलादें खराब नहीं होती, बर्बाद नहीं होती, संभल जाती हैं, सुधर जाती हैं। इसमें कुछ वक्त तहम्मुल और सब्र जरूर लगता है। अच्छा जी, अपने की हदायत के मुताबिक शहर में मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल हुए तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम ना आ सकी। ये पहले ही उनको पता था, लेकिन जानने के बावजूद कोशिश छोड़ी नहीं। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी कोशिश कर ली। वो यह कोशिश करती है, बेशक वो हमारी दीनी तालीम से ज़ाहिर इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को नहीं जानते, लेकिन तवक्कुल के तरीके और अंदाज को नहीं जानते और अपनी ताकतों को भी नहीं जानते। ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हज़ूर पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अल्लाह को बुला दिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था। और क्या कहा, फला तब्ताइस बिमा कानू यअमलून। बहुत बड़ा पैगाम, एक समुंदर का असूलों का पैगाम है इस मोहसिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इस तरह मुलाकात हो रही है अपने हकीकी भाई से कितनी देर के बाद, 13-14 साल कम अज कम, 13 to 15 years तो कम अज कम है ना। 17 साल की उम्र में फेंके गए हैं, अब कम अज कम 30-34 years के तो होंगे जब हुकूमत और ये बच्चे का मामला हो रहे। इतने सालों के बाद जब ताबड़तोड़ तकलीफें आई, तन्हाई में रहे, जुदाई में रहे, अकेले में रहे, गमों में रहे, दुखों में रहे, परेशानियों में रहे, आफतों पे आफतें टूटी हैं, जुल्म के अंबार लग गए इनके ऊपर। इतनी देर के बाद अपने भाई को मिल रहे हैं। जरा सोच, कोई आम शख्स होता तो क्या करता? पता है क्या करता? रोता तो जरूर, आहो बहार भी जरूर करता, शिकवा शिकायत भी जरूर करता, अपनी राम कहानी भी जरूर सुनाता, अपनी विपदा भी जरूर सुनाता, अपनी पूरी आप बीती सुनाता, गले लगता, रोता, ज़ारों के तार सब क्या क्या कितनी दुनियादारी करता। हमें जजारी में अपने जुल्म की कोई तो गुजार बयान करता, उनको कोई तो बुरा भला कहता। कॉमन रिश्तेदार है, उनको भी जानता है, इनको भी जानता है। आम शख्स होता तो पता नहीं कितनी नाम तान और गाली गलोच और कितने कितने उनके खिलाफ बातें होती और कितनी रुदाते होती। तो ये तो भी सच्ची हुई ज्यादती थी नहीं। ये तो अल्लाह ने इजाजत भी दे दी कि अल्लाह को बदगोई नहीं पसंद सवाए उस शख्स के जिस पर सादिम, जिस पर जुल्म हो जाए, तो अल्लाह ने इजाजत भी दी थी। लेकिन मोहसिन है ना, अल्लाह की रहमत से बढ़ के बात ना करे, कोई हर्फ शिकायत ज़बान पे नहीं आता। सब्र है, तहम्मुल है, कुर्बानी है, माफ़रफ़हमी है, ज़ब्त नफ्स है, ज़ब्त लिसान है, एहसान का एक अज़ीमत का पहाड़ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ज़बरदस्त मोमिन कैसा होता है? मोमिन का अपना माजी के साथ ताल्लुक, यास, आस, काश, हाय, रोना धोना, माजी के किस्सों और बखेरों में उलझता ही नहीं है। किस्सा है माजी, मज़ाब है माजी, बुलाते मुझे आप मेरा बुला देते अपने माजी को। अपने माजी के किस्से, अपने माजी के रोने धोने, आज आती दुनिया अपने माजी के गम रोनों को याद करती है। या हाल के अंदर मुस्तकबिल माजी के आसूदगियों को याद कर करके रोती। क्या खैर ऐसा है कि नहीं? यहाँ अपने हाथ हाय बड़ी तकलीफें काटी, आधी दुनिया सामने रो रही होती और यहाँ अरे अल्लाह मेरा मासी कितना अच्छा, देखिए मैं थी मेरे अब्बा कितनी खातरे लाड प्यार करते। ऐसी है ना, या मासी को याद कर करके रोते या मासी के गम से रोते हैं। वो मैं ऐसा नहीं करता, मैं कोई नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं करता, कोई काम जिसका कोई नतीजा नहीं होना, जिससे कोई फायदा नहीं होना, जिससे कोई
नतीजा मुरतब नहीं होना, उसने अपना माल वक्त अपनी सलाहियत नहीं खपाता, नहीं करता, बस होके गुजर गया, खत्म, मिट्टी डालो, कोई जरूरत नहीं किसी को बोलने की। फिर उस कहानी किस्से अफसाने की डबियां खोले, गुत्थियां सुलझाएं, वो पहले हुआ तब हम आया, अब इसको फिर किस्से कर करके फिर हम नाम होते हैं, वो क्या कराओगे, लेकिन और करता जो है, आगे चलो, आगे चलो, हाल में अपना तारीफ करना थे, मैं तुम्हारा भाई, हम मिल गए हैं ना, बस इस पे खुश हो जाओ। और ये लोग बड़ा कुछ किया है, बड़ा कुछ किया है, ये नहीं कहा है, इन्होंने जो कुछ किया है इसको मामला कर, दिल में गाना कर, दिलों की खुशादगी है, आप कर रहे हैं, वो सब पी रहे हैं, वो सब पीने की ताकीद की करें, तवाज़ो बिल हक़ की व तवाज़ो बिस सब्र, ये रवैया नजर आ रहा है। खुद भी सब्र कर रहे हैं, उसको भी सब्र की वसीयत और नसीहत कर रहे हैं, हक खुद अपना रहे हैं, हक की ताकीद उनको कर रहे हैं। भाइयों की मुलाकात का वक्त कितना आना जरूरी का, कितना खुशादगी का, और कितनी पॉजिटिव एक दूसरे को ताकीद का। आज के दौर खास तौर पे खवातीन, हल्का सा तकलीफ, हल्का सा गम, हल्की सी परेशानी, ससुराल में कोई हल्की सी ऊंच नीच, शौहर की तरफ से हल्की सी कोई बात सुनाई जाती है, बहन मिलती है, माँ मिलती है, सहेली मिलती है, क्या करते हैं, हट पड़ते हैं, मैं तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हो, यहाँ पे 17 सालों से 13 सालों से क्या क्या कुछ नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, कुछ नहीं, कोई काम कर, हाँ एक बार कह के नंद सास कहीं चली जाए, वो तो इंतजार ही नहीं होता, मेरी बहन का उठी नहीं मेरा तो बहुत जरूर चलता, फिर ये क्या मेरे पे तूफान आते, मेरे पे आफत रह गई, मुझे ये कहके चली गई, है ना। अपने किया जाता है कटारसिस के नाम पे, मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाए, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए करती हूँ, वरना मेरा दिल इतना बोझल हो जाता है कि फिर मैं फट पड़ती हूँ। इसलिए बताती हूँ, याद रखिएगा, ज़ुय्यिना लिन्नासि अमालुहुम, शैतान इन गंदे कामों को मुज़य्यन कर देता है, शैतान इन गंदे कामों को मुज़य्यन कर देता है कि जो फट रही है ना, तो अगर फटी ना यहाँ पे तो अपनी बहन के सामने तुमने अपने दावा का निकाला तो तुम वहां फटेगी, क्यों फटेगी, तो दोनों का लाए तो दोनों ना कर, वो हमेशा एक बड़े गुनाह, एक गुनाह से रुक के दूसरा गुनाह आसान कर दिया। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतना ही ज़ब्त नफ्स और इतनी ज़ब्त लिसान, सब्र और तहम्मुल की तौफीक अता फरमाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन भाइयों का सामान निकालने लगे तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। ये क्या है जी? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शायद मोस्ट प्रॉब्ली उनका कोई अपना साथी साइज प्याला है, कोई पीने का सिपाया है ना, उनका कोई पीने का प्याला है, कोई खूबसूरत सा नक्श निगार वाला गिफ्ट के तौर पर इन्होंने अपने भाई के सामान में रख दिया। ये एक ऑन द साइड हैपन है। फिर क्या हुआ? एक वो बांटने वाले ने कहा, हे बांटने वालों, तुम चोर हो क्या? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस पुकारने वाले को हुक्म दिया था, मैं इधर प्याला रखूंगा, उधर से हरासमेंट करना, कोई ऐसी बात नजर आ रही नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया कि उन्होंने चुपके से अपने भाई के सामान में एक प्याला रखा। मोस्ट प्रॉबेबली इट वाज अ गिफ्ट, कोई तोहफा अपने भाई को ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया। लेकिन एट द सेम टाइम कंकरेंटली, कोइंसिडेंटली उसको तकलीफ हो गया कि बादशाह का जो गुलाब फूल का पैमाना था वो टूट गया। उस शख्स ने कहा, मुझे काफले मालूम हो जाओ, तुम चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? पलट कर पूछने का क्या मतलब है? वो यहाँ काफला अपना सामान, अपना गल्ला लेकर रवाना हो चुका था और उसके पीछे से जब ये बादशाह के तोलने और नापने वाला पैमाना ढूंढा गया और वो ना मिला तो काफले वालों को पीछे से रोका गया। उन्होंने मुंह फेर कर रुख इनकी तरफ बोला कि तुम्हारा क्या, तुम लोग क्या तुम कर बैठे हो? उन्होंने कहा कि हम बादशाह का जो पैमाना नाप का है वो हम लोग कर बैठे। सरकारी मुलाजिम ने कहा, बादशाह का पैमाना हमें नहीं लेकर, कौन सा पैमाना था? शायद कोई पैमाना होगा जिसको नाप के जिसके साथ गलना दे रहे थे, किसी ने रखा होगा, वो वैसे ही आगे पीछे हो गए। और साथ ही को ऐलान करने वाले ने कहा, जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक बारिश शुद्ध
में से कोई मोस्ट प्रॉब्ली तो लोग जो पटेकों को चोर को ढूंढ के हमारा पैमाना हमें वापस दे दोगे तो हम क्या करेंगे? वापस लाने वाले को एक शख्स का राशन और दे देंगे। घूमी जाने वाली चीज की दरियाफ्त और उसकी बाजियाबी के लिए इनाम का ऐलान करना एक पॉजिटिव तरीका है। इन भाइयों ने कहा खुदा की कसम तुम लोग बहुत जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियां करने वाले हैं। क्या हुआ था? वालिद ने क्या कोशिश की थी कि ये एग्जाम न लगे, ये ना समझे जाए, चोर ना समझे जाए, मुचक्के ना समझे जाए, रमजान और फसादी ना समझे जाए। लेकिन बाप तो कोशिश ही कर सकता था ना, बाप तो अपना तदारुक करने का तरीका ही कर सकता, होता हुई है जो अल्लाह ने करना है। हमेशा हुक्म अल्लाह ही का चलता है, मर्जी अल्लाह ही की होती है। लेकिन ये जानने के बावजूद हमें हाथ छोड़कर हाथ पे हाथ कि मैं और आप पे होना तो वही है ना जो अल्लाह ने चाहा है, बस ठीक है इसलिए मैं कुछ करूँगी नहीं, करते रहना है, यानी कोशिश मेहनत सही, लेकिन राजी भरोसा रहना। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो झूठ की क्या सजा? यानी जो बादशाह के सरकारी ये लोग ढूंढ रहे हैं, इन्होंने काफले वालों को कहा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हर दीन इस्लाम में इस्लामी रियासत के अंदर रहने वाले भी और बाहर से आने वाले लोगों के फैसले और उनके मुकद्दमों की सजाएं उस इस्लामी रियासत के अपने अहकाम के मुताबिक नहीं, उन लोगों के दीन के उनके अहकाम और कवानीन के मुताबिक की जाती है। मदीना की रियासत में बिल्कुल ऐसा था। मिसाल के मदीना चार्टर ऑफ मदीना जो यहूद के साथ किया गया था, उसका भी एक उसकी जो पॉइंट थी वो यही थी ट्रीटी ऑफ मदीना की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद और ईसाइयों के फैसले उनकी इल्हामी किताबों और उनकी आसमानी किताबों के कवानीन के मुताबिक किए जाएंगे। तो लिहाजा यही तरीका है, उन्होंने भी इख्तियार किया कि तो हमारे अहकाम और हमारे कवानीन के मुताबिक हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, तो हमारे दीन के लोग नहीं हो, तो हमारे खित्ते और हमारे इलाके के लोग नहीं हो, तो बाहर से आए हो, तुम्हारी सजा तुम्हारे अहकाम और तुम्हारे तरीकों के मुताबिक होगी। ये वैसे भी इंसाफ का तरीका है। इस्लामी रियासतों में जो माइनॉरिटीज़ हैं और बाहर से आने वालों के लिए भी तरीका है, और वैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तरीका इसलिए भी इख्तियार करवा दिया कि इस ही तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत बिन्यामीन को अपने पास रख सकते थे। अल्लाह ने वसीला बना दिया इसको। अच्छा, जिन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा? उन्होंने कहा उसकी सजा जिसके सामान में से चीज निकलेगी वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अब उनके मुंह से सजा तजवीज़ करवाने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तलाशी का हुक्म दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले उनकी कुर्सियों में तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की कुर्सी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ किसके साथ की? अपनी तदबीर के साथ। गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे कि ये सारा का सारा प्लानिंग और ये सारा का सारा जो प्लॉट था, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्लॉट नहीं था। ये किसका प्लॉट था? अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लॉट और अल्लाह सुब्हानहू तआला की चाल। असल में जब आप कुछ तफसील का मुतालिया करेंगे तो इस पूरे के पूरे वाक़े की दो किस्म की आला आपको मिलेगी। एक ग्रोह मुफस्सिरीन का कुछ इस अंदाज में ये किस्सा बयान करता है कि सब कुछ कैसे हुआ। वो ये कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले खुद ही प्याला भाई के सामान में रखा, भाई के सामान में प्याला रखा, काफिला निकल गया। आपने पीछे से अपने लोगों को कहा कि ऐलान करो कि तुम्हारे पास हमारा प्याला है, और फिर इनके सामान इनसे चोर की सजा पूछो और फिर इनके सामान की तलाशी निकले तो प्याला निकल आया। गोया उन लोगों की राय में, उन मुफस्सिरीन की राय में ये सारे का सारा प्लॉट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही का था अपने भाई को रोकने के लिए। हालांकि ये राय बहुत ही कम मुफस्सिरीन के यहाँ मौजूद है।
اور ویسے بھی اگر آپ ہلکا سا سوچیں تو آپ دیکھیں گے یہ ایک ہلکا سا نا کچھ تھوڑا سا دھوکہ دینے والا اور نازویلا ایک بےایمانی کا سا طریقہ ہے. یہ ایک نبی کے شایان شان لگتا نہیں. بالکل لگتا نہیں کہ نبی نازویلا اس قسم کا کام اور یہ باقاعدہ پلان اور سازش کا کام اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ نبی سیدھے بھی ہوتے ہیں, دو کلیئر کٹ بات اور سچائی ان کا طریقہ ہوتا ہے. اکثریت جو مفسرین ہیں وہ بتاتے یہ ہیں کہ حضرت یوسف واقعات اور قرآن کی آیات کا ترجمہ اور الفاظ بھی اس چیز کو صحیح نہیں کرتے ہیں کہ رودان کیسے ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کوئی اور قسم کا پیالہ جس کا نام سقایا آیا ہے وہ رکھا تھا. اس کے بعد سواگ ہوا تھا. اعلان کرنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہے ہوئے نے محض اپنی بنیاد پر چوری کی تحقیق کے لیے اعلان کیا تھا. ان کو روکا گیا تھا اور تلاشی پر وہ پیالہ نکل آنے کی بنیاد پر حضرت علی بن ابی کو اللہ نے یہ پلان اور منصوبہ بنا کر دونوں بھائیوں کو ملانے کا طریقہ اختیار کروایا. گویا اللہ کے اپنے الفاظ ہیں, ہم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف اپنی تدبیر سے کی. اور یہ نبی کے زیادہ شایان شان بھی لگتا ہے. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین کے مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, علم آنے کے اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے جانتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور یہ علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. آیت الفاظ کیا ہے؟ وَفَوْقَهُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے. اللہ کی صفت وہ علیم ہے. علیم اللہ کی کیسے علم کی پہچان کرواتا ہے؟ علیم وہ علم والا رب ہے جس کا علم سب سے بڑھ کر ہے, مبالغے کی حد تک ہے, the maximum ہے. علیم وہ علم والا ہے جو اپنے علم کے لیے کسی پر محتاج نہیں. عالم اپنے علم پر اپنے علم کے حصول کے لیے اللہ پر محتاج ہے. علیم وہ رب ہے جس کا علم ہر علم اور ہر شعبے اور ہر زندگی اور ہر کائنات کے معاملے پر احاطہ کیے. عالم بھی علم رکھنے والا ہے, وہ ایک زندگی کی ایک شعبے کا ایک فیلڈ کا علم رکھتا ہے. علیم وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے کائنات کی ہر چیز اور علم کا احاطہ کرتا ہے. اور علیم وہ ہے جو ابد سے لے کے ازل تک علم رکھنے والا ہے. عالم کسی کا علم ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا میں عالم ہوں گے, بڑے بڑے عالم ہوں گے, لیکن علم رکھنے والوں اپنے علم پر تکبر کوئی نہ کرے. کیونکہ یاد رکھیے گا علم کبھی ایک تکبر ہوتا ہے. شیطان ہے کبھی ایک غرور, ایک غلبہ, ایک دھوس جو ہے وہ دل میں ڈال دیتا ہے. تو بڑے صاحب علم نہیں, کوئی غرور نہ کرے اپنے علم کا, کوئی تکبر نہ کرے کوئی صاحب علم اپنے علم کا, کیونکہ اس عالم سے اوپر ایک علیم ضرور ہے. ان بھائیوں نے کہا کہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات تھی. چوری ثابت ہو گئی تھی نا بھائی کے خلاف, چھوٹے بھائی کے خلاف. سماج میں جو چوری نہیں تھی, اب بڑے بھائی جو کیا ہے بڑی ذمہ کے سائڈ پہ بیٹھ کے الٹا الزام تلاشی کرتے ہیں. بڑا ایسا رویہ کہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. محترمو, اتنا بڑا الزام اور ظالم الزام لگاتے چلے جا رہے, ظلم کی انتہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے پہلے چوری کی تھی اور اللہ نے اس کی تردید نہیں کی, تو کیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حیات میں کوئی چوری کا موقع موجود تھا؟ اور میرے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائیوں نے جب تو چوری کا تذکرہ کیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ موجود تھا, کیونکہ اللہ نے ان کے اسپاٹ کی ترتیب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انبیاء بنیادی طور پر سلیم فطرت ہوتے ہیں. شرک کی, بے حیائی کی, فحاشی کی, بدکاریوں کی نا پیدائشی طور پر اور
नबूवत से पहले भी ना कराहत और नफरत अंबिया के मिजाज के अंदर शुरू से ही मौजूद। अंबिया बुनियादी तौर पर सलीम फितरत होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ की सिफात नजर आती हैं। तो हर नबी बुनियादी तौर पर नबूवत से पहले भी सलीम फितरत होता है। फितरत और दीन फितरत और अल्लाह की तरफ और नेकी की तरफ उनका रुझान होता है। तो बचपन के उस पीरियड में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बचपन के दौर में कहीं अपने ननियाल में गए। वहाँ पे उस दौर में कुछ बुत परस्ती का तरीका था। नानी का एक बुत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महज इसलिए उठा लिया, इस नियत से उठा लिया कि इस बुत को उठाकर तोड़ देंगे। तोड़ने की नियत से उठाया जाने वाला अपनी नानी का बुत, ये वो चोरी का मामला है जो बसा औकात गुजरा बयान से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लड़कपन या बचपन की दास्तान के रूपान में शामिल। इसी का हवाला देकर भाइयों ने तस्करा किया कि उसका भाई भी बचपन से छूट गया। वो चोरी कौन सी थी? वो तो बुत चुराया गया था तोड़ने के लिए। बहरहाल उन्होंने इसी का हवाला दिया और कहा कि अच्छा अगर इसका भाई ये नजर देखने नहीं था कि उन्होंने चोरी की, उसका बड़ा भाई भी चोरी किया, दोनों एक ही जैसे हैं। क्या नहीं है? एक भाई का गुनाह उसका इल्जाम दूसरे पर भी लगा देना, एक भाई का बुराई, एक भाई का ऐब, एक गिरोह का ऐब दूसरे में डाल देना, क्या जरूरी है इससे हो जाए? एक घर में अगर एक शख्स बुरा या एक शख्स शरीर या एक शख्स बद हो तो क्या उस घर के बाकी सारे अपराध इससे हो जाते हैं? और अगर एक के अंदर कोई बुराई का मामला आए तो क्या बाकी सबको भी रद्द कर दिया जाएगा? माशरे में ये तरीका बहुत आम है। एक शख्स घर का एक भाई रिश्वत देता है तो दूसरों के साथ भी बदगुमानी एसोसिएट करनी चाहती है। एक भाई चोर डाकू उचक्का है तो बाकियों को भी वैसा खुद से खुद समझ लिया जाता है। एक की बुराई दूसरे के ऊपर लेबल और टाइटल लगाने का बायस नहीं बन सकती। हर बंदे के अपने अमान अपने रवैये अपने इख्तियार हैं। तो किसी एक फर्द की बुराई और उसकी बदकारी या उसकी गुनाह की बुनियाद पर उसके साथ रिश्तेदारों के ऊपर वैसा गुमान मुसद्दर कर देना, ये कोई समझ का तरीका नहीं। अब फिर आपने बहुत दफा देखा होगा कि ये चीज़ की दफा ना इतना तशद्दुद का रवैया इख्तियार कर लेती है। हमारे माशरे में ऐसा औकात होता है कि 2, 3, 4 बहनें होती हैं, बड़ी बेटी की शादी हुई और फिर उसको तलाक हो गई। क्या होता है फिर? बाकी बच्चियों के रिश्ते में इस बड़ी बहन की तलाक भी रुकावट बन जाती होता है कि नहीं? इनकी बेटी बताने कैसी है कैसी नहीं है, बड़ी पहले तलाक के बाद घर बैठी है। और वैसे भी क्या पता तलाक की वजह, जुदाई की वजह जरूरी तो नहीं कि किसी एक शख्स की नापसंदी थी या उसकी कोई बुराई की इलामत है। बसा औकात तलाक, जुदाई, डिवोर्स महज बहुत अच्छे लोगों में भी हो जाती है कि दोनों का आपस में निकाह नहीं होता। क्या ख्याल है? हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद जैसे स्वाले जिनका जिक्र कुरान में आ रहा है और जो महातुल मोमिनीन की सब में शामिल की जाती है, क्या उनकी तलाक का मामला नहीं होता? बस औकात दोनों बड़ी हैं, बहुत नेक, बहुत स्वाले, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस आपस में निकाह नहीं होता, नेटवर्क नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। अब एक का निकाह नहीं हुआ, हो सकता है उसकी बुराई की वजह से नहीं हुआ, हो सकता है किसी हालात की वजह से नहीं हुआ, लेकिन एक का नहीं हुआ और उसकी जद में सारी घराने की बच्चियां आ जाए। एक भाई का मिसहैप हो जाता है, उसके बाकी भाइयों के साथ कोई रिश्ता नहीं करता। क्यों? इनके बड़े पता नहीं कैसे हैं, कब होगा कि दो तलाक के बैठा भाई ये कैसा है, क्या पता बाकी कैसे हैं। तो लिहाजा ये खुद से खुद बदगुमानियां इख्तियार कर लेना, ये बराबरानी मुसलमान की नेगेटिव और मनफी से सोचने का तरीका नहीं है। इल्ला ये कि तहकीक हो और वैसे भी बदगुमानी करना मुमिन का तरीका नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हाँ क्या कहा? सबसे नफ्स लगातार नजर आ रहा है कि नहीं? गुस्सा पीने की इतनी तरबियत हो गई है, वाकई मुझसे न बन जाए वो शख्स जो सूरह यूसुफ का इतना हसीन पैगाम अपना है। वो शख्स गुस्सा पी लेता है और अपने नफ्स को काबू पाने का तरीका सीख लेता है और अपनी ज़बान की लगामों को काबू रखना सीख लेता है, वो मुहसिन बन ही जाया करता है। अच्छा जी, वो क्या किया? यूसुफ उनकी बात सुनकर
पी गए। हकीकत उन पर नहीं खुली, बसेरे लबे से ना कह के रहकर बुरे बुरे हो तुम लोग। मेरे मुंह पर मुझ पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, उसकी हकीकत खुदा ही जानता है। गुस्सा कौन पी सकता है, मुझसे कौन बन सकता है, बताएं जी। जिसको रब की पहचान हो, रब की सिफात का इल्म हो, जिसके दिल में अल्लाह की सिफात का रसूल टिके हो, वही मुहसिन भी बनता है, वही काज़िमीन और गैस भी बनता है, वही उसने इखलास से मुत्तसिल भी होता है, जिसको हर हालत में पता है कि अली वो है। गुस्सा आने पर फटता कौन है और गुस्सा पीता कौन है, इसका रब की सिफत के हवाले से क्या ताल्लुक है? वो शख्स जिसको गुस्सा आए, ज्यादती हो, जुल्म हो, और उसको पता है कि ज्यादती करने वाले का रवैया अलीम को पता है, वो क्या करता है? अपने गुस्से से उसको नुकसान पहुंचाने की बजाय उस वाहिदुल कहार के हवाले कर देता है जो अलीम है। क्या ख्याल है, इंसान का गुस्सा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या उसका हार और जब्बार का गुस्सा खतरनाक हो? तो लिहाजा जिसको पता है कि वो कहार, वो जब्बार, वो अलीम है, वो अपने गुस्से से किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उस अपने दुश्मन और अपने जालिम को अलीम के हवाले कर देता है। और फिर जिसको गुस्सा आता है वो सब्र भी इसलिए कर सकता है कि उसको पता है कि मेरे सब्र का अजर जिसने देना है वो समी और अलीम है, इसलिए उसके लिए सब्र करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए तो रब की सिफात का जिक्र और रब की सिफात की पहचान अमल और अमाल सालिह के लिए इंतहाई लाज़िम है। अच्छा जी, जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने क्या कहा? ए सरदार जी इक़्तिदार अजीज, इसका बहुत ही बुरा है, उसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको एक बहुत ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। आप देख रहे हैं, हर अपना पराया दुश्मन बेगाना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में जिसने 4 दिन मुलाकात की है, 2 दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है, थोड़ा सा मिला है, हर आपसे मिलने वाला, इंटरैक्ट करने वाला आपकी एक ही गवाही देता है। वो कैद खाने वालों ने क्या कहा था कि आज 2 मुलाकातें करने वाले भाई ने भी यही कहा, इन्ना नराका मिनल मुज़िर, बेशक हमने आपको 5-6 दफ़ा देखा है, हमने आपसे 3-4 दफ़ा मामला और मुलाकात की है, इसमें कोई शक ही नहीं कि हम आपको मुज़िर देखते हैं। पैगाम क्या है? इंसान हुस्न, उसमें सलूक का पैगाम। हम आपको मोहसिन पाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बना खुदा की दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? एक तो वो अदल भी करने वाले थे, अदल हुक्मरान कहाँ पे होगा? अल्लाह के अर्श के साए में ना, एक तो वो अदल भी करते थे, ना इंसाफी भी नहीं करते थे, और वैसे इस अदल से उनका अपना काम भी, अपना मसला मामला भी हल होता था। हम किसी दूसरे शख्स को कैसे रख लें जिसके पास हमने अपना माल पाया है, उसको छोड़कर दूसरे को रख लेंगे तो हम साथे। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। हाँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो बड़े ही कन्विंस करने की कोशिश की ना कि ज़िंदगी को छोड़ दो, बाप पूरा है, अभी होने किसी को अब माने, अभी तक वो क्या करें? हाँ, उनमें से सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं तो तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा के नाम पर क्या कहने मेहमान दिया है। अब ना वालिद का भी फिक्र आने लगी है, कुछ हया भी आने लगी है, और अल्लाह की पहचान अब वालिद की जो तरबियत है ना वो निखरने लगी है, वो असरात नजर आ रहे हैं। तुम्हें याद नहीं है अल्लाह के नाम पर कौन सा वादा करके आए हो? अभी इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में जो ज़्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुम्हें मालूम। अब नादान, अब पशेमान भी है, अब एहसास भी आ रहा है। याद रखिएगा, जब अपनी कमी और कोताहियों का एहसास और इतराफ़ होने लगे ना, इस्लाह तभी हुआ करती। जब तक इतराफ़ खता ना, जब तक इतराफ़ खता नहीं होगा तब तक इस्लाह की तरफ इंसान आए नहीं होगा। अब मानने लगे मैं हमसे ज़्यादती हुई, जब ज़्यादती का एहसास होता है तभी तलाफ़ी की तरफ इंसान चलता है। अब तो मैं यहाँ हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त। अब इतने कलमा बरदार बन गए, अब तो करना ही कुछ नहीं
फरमा दे। और आप बड़े बेटे ने क्या कहा है जी? हाँ जी बताएं। वहुवा खैरुल हाकिमीन, बाप की बोली अल्टीमेटली औलादों की जबान पर आ गई। ये बाप की कामयाबी, ये वालिद की कामयाब तरबियत है। याद रखिएगा, अगर पूरे सब्र से, दरगुजर से, हिल्म से, जल्दबाजी से बच के औलादों की तरबियत में लगे रहेंगे ना, तो समरात जरूर मिलेंगे। पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव चीजों की शक्ल में जरूर प्रतीत होती है। कोई बाप जो हर वक्त अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का तारुफ, वहुवा खैरुल अरहमुर राहिमीन, उस पे तवक्कुल करो, वो गफूरुर रहीम है। काहे रब का तारुफ हो रहा था, अब औलाद भी अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं। तो जाकर अपने वालिद से कहो, अब बचाना कि साहिबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए देखा तो नहीं, जो कुछ हमें मालूम है बस हमको ही बयान कर रहे हैं। हम सच्चे हैं, सच्ची बातें बता रहे हैं, लेकिन आप कौन मानेंगे का सच? सब ये झूठे, स्टैम्प झूठे। हाँ, हम तो वही बयान कर रहे हैं, और गैर के लिए करवाने तो हम कर नहीं सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए, जहाँ झूठे हैं ना, उन्हें पता है बात में मानना नहीं, अब अपने को बात आ गई। यही होता है झूठ का नुकसान, और यही होता है झूठे का अंजाम। एक दफा का झूठ सारी जिंदगी के लिए तबादुल करता है, सारी जिंदगी के लिए शख्स को बेतबार बना देता है। और फिर उस सच भी भूले ना, तो उसका सच भी कोई नहीं मानता, फिर उसको अपने सच के लिए भी और लोगों की गवाही और सपोर्ट की जरूरत है। और जो सच बोलने वाला है उसको न किसी सपोर्ट की जरूरत है, न किसी गवाही की जरूरत है। उसका गवाह निगरान कौन होता है? उसका निगरान उस सच्चा रब बन जाता है। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ ले, जहाँ हम थे, उस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं, बार बार सच्चाई बावर करा अपनी बात माने। बाप ने दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल करा। अब भाग कर भैया फिर दूसरी दफा देख लीजिए, क्या करके आए हैं बेटा। बेटे अब फिर वालिद के ख्याल और वालिद के गुमान और राय के मुताबिक दूसरे भाई के साथ फिर कोई ज्यादती, ये मामला है कि नहीं? पिछले भाभी ने ज्यादती की है, तुमने फिर कोई ज्यादती की। लेकिन इतनी बड़ी दूसरी दफा की ज्यादती की ख्याल और राय के बावजूद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटों के साथ क्या तरीका है? वही तरीका, औलाद की तरबियत में तहम्मुल, सब्र, पेशेंस, टॉलरेंस, दरगुजर करना, माफ करना, ठंडे दिल से हैंडल करना, कूल टेम्पर्ड होकर हैंडल करना, एक आध मौके पर नहीं, लगातार ही करते रहे, हर वक्त ही करते रहे, हर मौके पर ही करते रहे। और उनको दरगुजर या माफ करने से, उनको सजा देने से, छोड़ देने से ये बिगड़ेंगे नहीं, ये संवरेंगे सजा के बगैर, ये संवरेंगे दरगुजर से। औलादें संवरती मोहब्बत और खलूस और इखलास के साथ। अब माफ कर दिया, और फिर क्या कहा? साथी नन्ना, अच्छा मैं सब्र करूंगा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हर दफा कैसा सब्र किया था? सब्र करना है तो कैसा सब्र? सब्रुन जमील, रो धो के नहीं, एंड में पड़ता क्या ना पड़ता। हाँ, अल्लाह सब्र तो फिर दे देता ना, ऐसे नहीं, शुरू से सब्र। ये सब्र क्यों था? इतना सब्र जमील क्यों था? अगला जुमला बताता है कि सब्र क्यों आया था। ऐसा मुमकिन है कि वो नहीं आएगा साथ उनको, मेरे पास अल्लाह वो रब अलीम भी है, वो हकीम भी है। सब्र उन्हीं को आता है, सब्र उन्हीं को आता है, सब्र करना जमात के साथ उन्हीं को नसीब होता है जो हर तकलीफ और दुख में मायूस नहीं होते, नाउम्मीद नहीं होते, हिम्मत छोड़ते नहीं, हौसले पस्त नहीं करते। और नाउम्मीद और मायूस कौन नहीं होता? खुश और राजी कौन रहता है? हर हालत में मुतमईन, पुरसकून, राजी पर रज़ा कौन रहता है? जिसको अल्लाह की कौन सी सिफत की पहचान है? कौन सी सिफत? वो अलीम है, वो हकीम है। सारी लड़ी जुड़ी, कड़ी जुड़ गई ना, तकलीफ आएगी तो क्या करना है? सब्र। कौन सा सब्र? जमाल वाला। ये जमाल वाला सब्र कब आएगा, कैसे आएगा? जब मैं तकलीफ की हालत में मायूस नहीं होगी,
नाउम्मीद नहीं होगी, हिम्मत हौसले पस्त नहीं करूंगी। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मेरे पास सिफत कैसे पैदा हो? ये सिफत मेरे अंदर तब आएगी जब मैं अल्लाह की अली और हकीम होने की सिफत को पहचान। अच्छा जी, अब ये सिफत पहचानने के बावजूद हम जो है उन्होंने क्या किया, वो क्या करने लगे? इसके बाद वो उनसे मुंह फेर कर बैठे, फकी में नहीं, सर आपको अकेले से अपनी हाजत का अपने उनसे मुंह फेर कर बैठ गए। वो सब कुछ जानता है। हाँ, वो फेर कर बैठ गए और कहने लगे, हाय यूसुफ, फिर पता चल गया ना। ऐसा होता है तबिया का किस्सा पढ़ते तो लगता है तो वहां होता ही नहीं था, उदास होते ही नहीं थे, तो खाता ही नहीं था, तो खा रहे बहुत ज्यादा आ रहे। हाय यूसुफ भाई को याद कर करके उनको भी रोना आता था, उनको भी गम आता था, लेकिन उसके बावजूद सब्र चली। हाय यूसुफ को तेरे दिल में गम से घुटता जा रहा था, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। बेटों ने कहा खुदा रात तो बस यूसुफ ही को याद। ये हसद की चिंगारी ना अभी तक पूछी नहीं है, अभी भी हाथों से कोई ने फेंका है, निकाल दिया बस्ती से। कितने साल हो गए, अब वो ना रहा है ना कोई मसला है, बाप की तवज्जो मोहब्बत अरबत मिल रही है, लेकिन वो ना उनका जिक्र भी जो है ना इनको चला। हसद ऐसा ही होता है, इतना बेवकूफ होता है ना, मोहब्बत ले रहा है तुम्हारे बाप की, ना तवज्जो ले रहा है, ना माल दे रहा है, कोई चीज भी तो तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रहा, चार जुमले भी उस बेटे के नाम पे आ जाते तो तुम्हें हसद हो जाता, ये भी पता। हसद ऐसा बेवकूफ हो जाता है। खुदा रहा तो बस यूसुफ ही को याद किए जा रहे हैं, नौबतियाँ आ गई, उसके गम में आप अपने आप को बुला देंगे, अपनी जान को खराब कर डालेंगे। उसने कहा मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र जमील करने वाले उस मोहसिन के रवैये में मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं और आप, हमारे माशरे में ख़वातीन बच्चियाँ जो अपने गम की दास्तानें पता नहीं किस किसके सामने खोलती, अपने टुकड़े, अपनी विपता, अपने जुल्म ज़्यादती के किस्से अपने दिलों का बोझ हल्का करने के लिए पता नहीं कितने कितने लोगों के सामने बयान करती हैं। उसमें गिबतें भी होती हैं, चुगलियाँ भी होती हैं, बहुतान नाराज़ियाँ भी होती हैं, अपने शौहर की आबरूज़नी भी होती है, उसके नाज़ों को खोलने का तरीका भी होता है, एक नहीं कंपाउंड बना होता है। कितने लोगों के सामने अपनी दास्तानें सुनाई जाती हैं। सबके लिए पैगाम क्या है? शिकवा शिकायत किसके सामने करनी? इन्नमा बेशक अश्रु बसी व हुज़्न अल्लाह। शिकवा शिकायत, रोना धोना, गम फरियाद किसकी तरफ करनी है? जो कौन है? दुनिया वालों की तरफ करते हैं, कभी वो सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, कभी सुनी अनसुनी कर देते हैं, और फिर बड़े गम और दुख और दर्द के साथ कोई सुनेगा भी तो सुनने के बाद क्या वो मेरी तकलीफ दूर कर सकता है? क्या वो मेरा मन टाल सकता है? तो फिर सुनाना किसको जरूरी है? सुनाना उसको जरूरी है जो सुनता है, सुनाना उसको जरूरी है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, सुनाना उसको जरूरी है जो माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ को सुनाना जरूरी है, बहन को सुनाना जरूरी है। सुनाए किसको? जो सुनता है। सुनाए उसको जो सबकी सुनता है। सुनाए उसको जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सुनाए और बताएं और शिकवा शिकायत उसके सामने करें जो सबसे ज्यादा रहमान और सबसे ज्यादा रहीम है। और सुनाए उसको जो तकलीफ दूर करने की कुदरत रखता है, जिसके इज़्ज़त से आई थी उसको सुनाए, जिसके इज़्ज़त से डरेगी उसको सुनाए, जिसको सुनाने का कोई मकसद है उसको सुनाए, और जिसको सुनाकर आपको कोई अच्छा मशवरा या रहनुमाई मिल सकती है उसको सुनाए। बस अपने दुख और अपने गम की रुकाते लोगों को मशवरे लेने के लिए भी सुना जाता है। बहन से मशवरा, माँ से मशवरा, बताओ मैं क्या करूँ, ये मुझ पर हालात होते हैं सुबह शाम, तुम बताओ मैं क्या करूँ? मशवरा करना है तो किससे करना है बताइए? अल्लाह से क्यों करना है? बहन से क्यों नहीं करना? बहन से करेंगे, माँ से करेंगे, वो आलिमुल गैब नहीं है, वो आलिमुल गैब नहीं है। और वो माँ, वो बहन, वो सहेली, उसको तस्वीर का मैं या आप सिर्फ एक रुख दिखाएंगे। वो तस्वीर का सिर्फ वो रुख देखेगा वो शख्स जिसको मैं इतना मशीर दुनियावी मशीर बनाऊंगी, वो तस्वीर का सिर्फ वो रुख देखेगा जो मैं दिखाऊंगी। उसके पास हतमी इल्म नहीं है, वो
मामले की गहराई को हकीकत में नहीं जानता और फिर सबसे बढ़ के मोबाइल का इल्म, मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखता, तो क्या मशवरा देगा? वो 4 घर दूर बैठकर हालात को ना जानकर सिर्फ मेरी पेट की एक पिक्चर पर मुस्तकबिल की एक घड़ी को ना जानने वाला मुझे क्या मशवरा दे सकता है, मेरी क्या रहनुमाई कर सकता है, मेरी क्या गाइडेंस कर सकता है? उस रब ने अपनी रहनुमाई और गाइडेंस का दरवाजा भी खोल दिया, शिकवे शिकायत के लिए दुआ के दरवाजे भी खोल दिए, शिकवा शिकायत, रोना धोना, गम दास्ताने सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे। और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ वैसे तुम नहीं। गोया ये रवैया अपना बन सकता है जिसको अल्लाह की पहचान। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोल लगाओ। इतना सब्र क्यों था? नाउमीद नहीं हो रहे ना, मायूस नहीं हो रहे। जब तक उम्मीद का चिराग और दिया जलता रहता है, मायूसी नहीं आती, तब तक सब्र होता है। जब उम्मीद का दिया बुझ जाता है, मायूसी के अंधेरे आ जाते हैं, तो फिर बेसब्री के अंधेरे भी आ जाया करते हैं। उसके भाई की कुछ टोल लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो बसता फिर ही मायूस होते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ सरदार इक़्तिदार, हम और हमारी अहल सख्त मुसीबत में मुब्तला है और हम कुछ हकीर सी पूंजी भी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर भला अनायत फरमा दें और हमें खैरात कर दें। क्या बताया? देखिए हमारे हालात बहुत कम है, भाई आपने वैसे रुक गया, अब्बा हमारा परेशान है, खाना हमारे पास है नहीं, बस ये थोड़ा सा पैसा है, इस पैसे को लेके इसकी बस तो कुछ भी गंदा नहीं आना, लेकिन आप क्या करें? हमें हमारे हाथ से बढ़ गए, जैसे खुदा रास्ते का बंदी लोग गरीबों मस्कीनों को लेके हम पर सदका करते हैं। और साथ ही क्या कहने लगे, इन जैसे तो सदका करने वालों को बड़ी जजा, ये जजा, ये सजा, ये सदके का दरस दे रहे हैं ये जालिम, ये कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, ये जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले, आज उसी मजलूम भाई को जाके तो दरस देने लग पड़े, उसी को जाके नेकी के रास्ते दिखाने लग पड़े और उसी से सदका मांगने लग पड़े। अच्छा ये जब हद हो जाती है ना जुल्म की, तो बस औकात इंसान बात कर ही लेता है। हमें खैरात कर दे, अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। अरे रहा तो गया, बात कैसे की? कोई इंसान होता है उससे रहा ना जाता ना, पहले चोर बिका था, तरस दे रहे आपके नेकी का, इतने गुनाह करने वाले कोई नॉर्मल बंदा होता तो पता नहीं क्या गिरफ्तार पकड़ता, बाल मुड़ता, पता नहीं कितना मारता पीटता, कितना मरवाता, कितनी सजा देता, गर्दने उड़वाता, नान नान गाली गलौज करता। नबी है, मोहसिन है, ये शायद शान ही नहीं, ये मोहसिन का तरीका ही नहीं है। कितना सेल्फ कंट्रोल है। मुनाफिक कैसा होता है? मुनाफिक की अलामत है, जब लड़ाई करता है तो क्या करता है? हट पे पड़ता है, गाली बकता है। निफाक का तो रंग भी नहीं है ना, मुझसे मुसद का रंग है, ईमान का रंग है। लड़ाई कर रहे, गुस्सा तो है, बहुत ही आया होगा, लेकिन गुस्से में बात कैसे करते हैं? फटते हैं। ईमान है ना, तुम्हें कुछ मालूम है? कितना सेल्फ कंट्रोल है, इसमें बात भी कर रहे हैं तो कितनी नब्बी खुली सच्ची, असल में अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करते। मोमिन वो होता है जिसके ऊपर शैतान आने भी नहीं आता, वो अपने ऊपर हालात को गालिब नहीं कर देता, हर सिचुएशन में अहम से गैर अहम की तरफ माइल नहीं हो जाता, अहम चीज की तरफ माइल रहता है। ये मोमिन होता है, ये मुस्बित है। तुम्हें कुछ मालूम है? मैंने उनको इल्म की कमी है, तुम्हें कुछ मालूम है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया था? तुम्हें ये नहीं कहा जालिमो, जाबिरो, कातिलो, कत्ल की कोशिश की थी। जब तुम नादान थे, उनको उनकी नादानी, उनके इल्म की कमी का एहसास कितनी मोहब्बत से करवाया। गुनाहगार से नफरत नहीं कर रहे ना, गुनाह से नफरत कर रहे, बदकार से नफरत नहीं कर रहे, बदकारी से नफरत कर रहे। ये रवैया जब होता है तो सोच मुस्बित हो जाती है।
मामलात में गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है जब तुम नादान थे कितनी मोहब्बत के साथ उनको की नादानी, मतलब माफ करने के बाद उनको बचा, तुम्हारा कसूर ही नहीं था ना, तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने ये काम कर लिया, ताकि वो पता लगाने की कोशिश करे अपनी इस्लाम की तरफ आए। तो चौंक कर बोली भाई तुम यूसुफ हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। मुझसे एहसान किया नहीं करता। हाँ ये कहते थे देखा मैंने तुम पे कितना एहसान किया ना, मुझसे एहसान करता नहीं है, एहसान करता है एहसान जिताता नहीं है। और मुझसे रब का ताल्लुक करवाते हैं, अपने एहसान नहीं के बाद अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। रब का ताल्लुक, रब का शुक्र। हकीकत ये है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के हाय से नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। अल्लाह किनको अजर देता है? मोहसिनों को अल्लाह अजर देता है। लगातार मोहसिनों का रवैया, मोहसिनों के इखलाक, मोहसिनों की बातें, मोहसिनों के जुमले दिखाए गए और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहसिन का अंजाम बता रहे। मोहसिन बन के तो देखो, मैं तुम्हारा कोई अजर ज़ाया तुम्हारे इखलाक में मोहसिनों का, मैं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और मोहब्बत दे, तुम्हारी इबादत में मोहसिनों का मैं तुम्हें जन्नत में अपना कुर्ब और बाला खाने में दाखिला दे, तुम्हारे रवैये में मोहसिनों का, तुम्हारे मामलात में मोहसिनों का तुम्हें आला इनामात और अपनी आज़ाद से और अपने साए के अर्श के साए में दाखिल करो। अब उस करने को देखो। अच्छा जी के बाद उन्होंने कहा खुदा तुमको अल्लाह ने हम पर बसीरत बख्शी है, हम वाकई खताकार हैं। कौन सा रवैया है मोहसिन का? बुराइयों को भलाइयों से दूर कर देना। काम बड़ा मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है। कोई बुराई करे तो उसकी बुराई को भलाई से बदलना बड़ा मुश्किल काम है। कुरान खुद कहता है ये बड़े ज़रफ़ की काम है, बुराइयों को भलाइयों से बदलना ये बड़े ज़रफ़ का काम है। और ये काम और ये अमल नसीब नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले, ये नसीबे वाले लोग, ये मोहसिन हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वाक़ई की बुराई को नेकी से बदल रहे हैं, बदल जाती हैं, ये बदल जाते हैं। रसूलुल्लाह के साथ बुराइयां करने वाले भलाइयों से रवैया बदल गया। मुझे बताया कि वतन देश के दिल में घर करने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, वतन देश के दिल में घर करने वाला, यही रवैया है यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जब वाकई माफ हो गया तो क्या था? वही जवाब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है मक्का के मौके पर मुशरिकीन मक्का को दिया था। आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, मैं आज हाकिम वक्त हूँ, मैं हुक्मरान हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी गिरफ्त कर सकता हूँ, मैं कैद करा सकता हूँ, मैं जंजीरों में जकड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी गर्दनें उड़वा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, ना तुम्हारे बातों पर, ना तुम्हारे रवैयों पर। मुझे हुक्म है जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ करूँ, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे ना दे मैं उससे दूं। वापस रही वाले को क्या फिर सिर्फ खुद ही माफ नहीं किया, सिर्फ खुद ही माफ नहीं किया, सिर्फ खुद ही गुस्सा नहीं किया, एहसान कैसे कर रहे हैं? खुद माफ करने के बाद उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। या फिर ये है मोहसिन, गुस्सा किया था, माफ किया था, एहसान क्या है? उनके लिए अल्लाह से माफी और बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। और फिर बात का तरीका क्या दुआ, क्या तरीका? तुम्हारा रब अरहमुर राहिमीन है। याद रखिएगा, जो अपनी खता को महसूस करके किसी दाई किसी मुबल्लिग की तरफ आता है, उसे रब की रहमत से मायूस करना दाई दीन का तरीका नहीं। कोई शख्स अपनी खता का इकरार कर ले, कोई शख्स बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा फासिक फाजिर अगर एहसास से नदामत और पशेमानी के साथ कह दे इन्ना कुन्ना लखातिईन, तो उसके लिए क्या करना है? या
यग़फ़िर लकुम की दुआ करनी है, वहुव अरहमुर राहिमीन, रब का तारुफ करवाना है। गुनाहों से बख्शिश करके पलटने वालों के लिए सख्ती और ना बख्शे जाने की वईद सुनाना दावत का तरीका नहीं है। अल्लाह खुद कहते हैं मेरी रहमत से मायूस न हुआ करो, पलट के तो देखो मैं पलटूंगा, तो ये दिन भी हमेशा यही तरीका अपना है। अच्छा जनाब, फिर कोई तरीका ना, कोई माजी का किस्सा, ना पुरानी कहानी, ना पुराने तज़किरे। तुम्हें याद है मेरे साथ कैसे किया, तुमने मेरी बाजू पकड़ी, तुमने मेरी टांग पकड़ी, याद है तुझे कोई में जालिमों कैसे फेंका था, लेकिन वही रुझाते, वही किस्सा याद है माजी, भूल गए। आगे चलो, अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश की दुआ की है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा कर्म हो रहा है नहीं, अब आगे चलो, पीछे की बात खत्म, अब की तरीका पॉजिटिव, आगे क्या करो। अच्छा चलो मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बीमारी पलट आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या खैर का इल्म था कि मिस्र में बैठकर उनको पता था कि मेरे वालिद का फलस्तीन और कनान में आंखों की बिनाई वही के जरिए खबर दी गई थी, उनकी बिनाई पलट आएगी। और फिर क्या करो, गुस्सा देने वाले, माफ करने वाले ने बख्शिश की दुआ की थी, कहते जाओ बख्शिश की दुआ, जाओ वहीं पे जाते रहो। एहसान करने वाले एक एहसान ही एहसान पर एहसान बस करते ही चले जाते हैं। क्या कहते हैं, सब अपने अपने अहलो यार को भी मेरे पास मेरा, उनको पता है ना अल्लाह ने रहने मादर को पुकार कर क्या कहा, जो इसको जोड़ेगा मैं उससे जोड़ूंगा, जो इससे काटेगा मैं उससे काटूंगा, तो लिहाजा रहने मादर को जोड़ रहे, जालिमों को माफ कर रहे हैं, कटने वालों से जुड़ रहे हैं, ना देने वालों को दे रहे हैं। और आपने जो फरमाया कि बदले में सिला रहमी करता हूँ, मुकम्मल सिला रहमी नहीं है, बदले में नहीं कर रहे, इतने जालिमों को भी कहते हैं सिला रहमी करके ला यदखिलुल जन्नत वाक़ी और रहम जानने वाला मैं रहने रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो माफ कर देता है, सलाम में पहल करता है, वो जन्नत की वस्त में अपना घर बनाता है। ये सबको माफ करके अपने सलाम और अपनी रवादारी और अपने एहसान में पहल कर रही है। जन्नत की हदीस है, जन्नत के नुमाइंदे बन के आए, जन्नत हासिल करने के तरीके से खाने के लिए आए, तो नमूना कायम कर 50 सालों को लिया। जब एक काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बाप तो ऐसे ही हुआ करते, बाप तो ऐसे ही हुआ करते। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले खुदा की कसम अब भी तक उसी पुराने खत में पड़े हुए हैं। फिर जब खुशखबरी जाने वाला आया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दी और यक उसकी बिनाई कूद कर आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता ना था मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब इस्लाम मुकम्मल हो गई। अब बाजान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें। अब उनको ये नुस्खा समझ में आ गया ना कि अल्लाह बख्शता है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बख्शिश की दुआ की है, रब का तारुफ करवाया। अब अपने गुनाह का इकराम करने के बाद जिसके पास जा रहे हैं उसे कह रहे हैं हमारे गुनाह की बख्शिश, गुनाह का इकराम आ गया, बख्शिश की तरफ चल पड़े, खुद भी बख्शिश मांग रहे हैं, लोगों से भी कह रहे हैं हमारी बख्शिश की दुआ, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। हम वाकई खताकार हैं, माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले, इग्नोर करने वाले बाप की औलादें क्या खता पर जमी रही थी? क्या वो उससे ज्यादा बड़े चोर, डाकू, उचक्के, कातिल, राज़न, डकैत बन गए थे? जिनकी झूठ को, जिनकी गलत रवियों को बाप ने ढांपा था, इग्नोर किया था, क्या वो उससे बड़े कातिल, राज़न बने थे? नहीं, वो एक तरह से खता करके, नातिल होके, मुस्लिम बन के रब की तरफ गैर खाम बनकर वापस पलट आए थे। क्या हम वाकई खताकार थे? उसने कहा मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा। फिर वो किया कौन सा तारुफ? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। मौके महल की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से रब का तारुफ करवाते रहना। और दूसरा, रब की तरफ पलटने वाले, नादिम और पशेमान
रब के गफूर और रहीम होने का तारुफ करवाना जरूरी है, ताकि पलटने वाले को जब यकीन हो जाएगा कि वो बचेगा तो वो पलटेगा, पलट के जमा रहेगा, पलटने के बाद बख्शिश की उम्मीद के साथ देखिए ऊपर डटा रहेगा। और याद नहीं, आपकी इस्तकामत दिलाने की बुनियाद पर जो जमा रहे वो मेरे और आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन जाए। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा दिया। अच्छी औलादें ऐसी होती है। और ये कौन से वालिदैन? माँ कौन सी है? सही बात नहीं, ये सही बात नहीं है। याद रखिएगा, वालिदा का हक भर के मौजूद है, चाहे वो सही हो चाहे वो सौतेली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पालने वाली उस माँ हज़रत फातिमा बिन्ते असद के लिए बहुत ही खैर खानी और एहसान का रवैया करते नजर आते हैं। वो से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी इस माँ की इज्जत और उनकी तकदीम करते हुए नजर आते हैं। सबको वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने साथ तोहफे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। घर वाले अमन से कैसे रहते हैं? कुंभों में, घरानों में अमन कैसे रहता है? कट के, अलग अलग होके, लड़ाई झगड़े में, जुदा जुदा होके? नहीं, कुंभों में, घरानों में, फैमिलीज में अमन और चैन तब होता है जब सब मिलजुल कर मोहब्बत, खलूस और रहम के रिश्तों को कायम करके रहते हैं। यही अमन और चैन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तजवीज़ दी। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को क्या किया? उठाकर अपने पास तख्त पर बिठा दिया। अच्छी औलादें, अच्छी औलादें, परवरदिगार औलादें, अपने वालिदैन के साथ एहसान करने वाली औलादें ऐसा ही करती हैं। ऐसा होगा औलादें वालिदैन की कोशिशों और काविशों की बुनियाद पर दुनिया में बहुत तरक्की कर जाती है, बहुत इज्जत, बहुत ओहदा, बहुत इक़्तिदार पा लेती है। और फिर ऐसी अहदे और ऐसे इक़्तिदार और दुनिया की ऐसी इज्जत और नामरी हासिल करने के बाद औलादों के दिलों में बसा होता है ऐसा शैतान तकब्बुर और फख्र डाल देता है कि वो अपने वालिदैन के मुकाबले में फख्र और गुरूर करने लगते हैं। इस वक्त इस इज्जत और शोहरत और नामवरी की हालत में उन्हें अपने वो वालिदैन अपने से कमतर, अपने से हकीर और अपने लिए बेकार और बेसूद और नामुफीद नजर आने लगते हैं। अपने वालिदैन को अपने से दूर करने लगती हैं ऐसी औलादें। ये स्वाले औलादों का रवैया नहीं है। नेक औलादें जब अल्लाह उनको तरक्की देता है, इज्जत देता है, हुकूमत, ओहदा, इक़्तिदार, नामवरी, शोहरत देता है तो वो तकब्बुर नहीं करते, वो आजिज़ी करते हैं, इंतज़ारी करते हैं। और आजिज़ी और इंतज़ारी सबसे बढ़कर अपने कंधे अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी से झुका देते हैं और इस चीज़ का इक़रार करते हैं कि अल्लाह मेरी इस इज्जत और इस दुनियावी इकराम और शहरत की बुनियाद वसीला तो तू है, लेकिन इसका वसीला मेरे वालिदैन को तूने कर उनको अपनी उस इज्जत में, उन नेमतों में अपने साथ शामिल कर देते। आज औलादें जरा सी तरक्की कर लेती, वालिदैन बूढ़े बेवकूफ़ भी समझे जाने लगते हैं, उनको धुलदार भी लिया जाता है। इतना बड़ा कोर कमांडर हाउस होता है और वालिदैन को किसी कोने के कमरे में रखा जाता है। हमारे बहुत से उनका मेहमान आते हैं, हाई क्लास टॉप क्लास सोसाइटी में हम बोलते हैं, अम्मा पता नहीं कैसी बातें करती है, इसको ना लाना, काबुल में इसको ना बीच में बिठाना, अपना को ना बिठाना, मेहमान आएंगे तो अपना कहते ना कमरे से बाहर ना निकले, ये क्या रवैया है? उनको हकीर, उनको कमतर, उनको घटिया समझने का। और बस आप बात करो अपने घरों में अपनी चीज़ों में कुछ शामिल ही नहीं करते। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरे मुल्क में, एक दूसरे मुल्क के अंदर इज्जत का इक़्तिदार दिया था। आज मेरा ख्याल है हमारी इस तरक्की याफ्ता कौम का सबसे बड़ा सानहा 50% वालिदैन के साथ ही है कि औलादों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, इल्म के बहुत बुलंद मर्तबों पर फाइज करने के बाद औलादें दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो जाती है। वहाँ माल को आती है, औलादें तरक्की करती हैं,
बहुत बुलंद होते पाती हैं, लेकिन उस दूसरे मुल्क में अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। वालिदैन बूढ़े, कमजोर, मफलूज, पैरालाइज, बीमार, तन्हा अपने बुढ़ापे में अपनी औलादों की मोहब्बत, उनकी अयादत, उनकी तवज्जो को तरसते और तड़पते और सिसकते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दूसरे मुल्क में हुकूमत होदा इक़्तिदार से नवाज दिए गए थे। अपने वालिदैन को अपनी नेमतों और कामयाबियों में शामिल करके अपने तख्त पर अपने साथ बिठा दिया। अगर आज मुझे मेरे वालिद, मेरे रब ने तख्त पर बिठाया है तो इस तख्त का वसीला, उसकी तरबियत, उसकी तालीम, उसका जरिया मेरी माँ और मेरे बाप थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने वालिदैन के एहसानात को, उनके सारे मामलात की कदरदानी करके उनसे एहसान की तौफीक अपनाने वाली औलाद बना दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक और अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अच्छा जी, सबको अपने तख्त पर वालिदैन को बिठा लिया और सब उसके आगे बेइख्तियार सजदे में झुक गए। ये सजदा नमाज के सजदे की तरह का सजदा नहीं था। सजदे का मतलब अरबी ज़बान में झुक जाना, बाव डाउन करना है। और बाव डाउन करने में क्या होता है? पेशानी नाक जमीन पर नहीं करते। पेशानी और नाक वो सजदा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी को नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ सजदा ताज़ीमी में झुके थे। और इससे अल्लाह के अलावा किसी साहिब इक़्तिदार को, किसी साहिब इल्म को, किसी अपने से बुलंद दर्जे वाले को सजदा करने का जवाज़ नहीं मिलता। सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं किया जाएगा। सजदा सिर्फ उस रब अकबर का हक है और इसके अलावा किसी और के आगे सजदा करना क्या है? शिर्क है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा साहब ये ताबीर है मेरे मुस्कान की जो पहले मैंने देखा था, मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला। हर हाल में क्या है? साबिर तो है, लेकिन हर हाल में शाकिर है। अल्लाह की नेमतों का इकरार करना रवैया है। अब इस शाकिर जो होता है वो तकब्बुर नहीं करता। मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये तीन चीजें लिंक्ड हैं। जो जाकिर होता है वो साबिर बन जाता है। जो सब्र करता है फिर उसको शुक्र की तौफीक मिलती है। और जो शुक्र करके अल्लाह की नेमत का इकरार करता है फिर वो अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करता। तकब्बुर करने वाला शाकिर नहीं होता अल्लाह का, और अल्लाह का शाकिर वो तकब्बुर नहीं होता। ये दोनों चीजें आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब जब इतनी बड़ी ओदा पोजीशन डिजिग्नेशन मिली है, भाई माँ बाप इतनी देर के बाद मिले, कोई तकब्बुर करे, कोई धौंस चढ़ाए? देखा मैं कितना सियाना था, मैंने कितनी मेहनत की है। तुमने तो कुएं में डाल दिया था ना, मैं बड़ा होशियार था, मैंने बड़े पापड़ पहने हैं, मैंने बड़ी मुश्किलें काटी हैं, मैं वही बड़ा सियाना, मैं वही। कोई तकब्बुर नहीं, कोई तफाकुर नहीं। देखा मैं कितने अकेला मैंने तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। देखा ना मैंने सबका हुक्मरान बन गया। नहीं बना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हैं ना, ये तकब्बुर नहीं है। तो लिहाजा क्या था? मेरा कोई कमाने के आज मैं हाकिम बन गया, मेरा कोई कमाने के मैं इस पोजीशन में पहुंच गया। आज अहसना भी, मेरे रब ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया है। उसने मुझे फिर सारी नेमतों का तज़किरा माजी में भी, हाल में भी। मोमिन का अगर ताल्लुक है तो कैसा होता है? इस्तग़फ़ार का, मेरे रब के नाम के शुक्र का। उसने मुझे कैद खाने से निकाला, आप लोगों को सहरा से मुझे नाम करने लाया। यहाँ पे लोग भी तो सकते थे, मुझे कैद खाने में डाला, आपको मुझसे इतनी दूर रखा। नहीं, पॉजिटिव सोच है ना, शुक्र पॉजिटिव लोग ही करते हैं। क्या कह रहे हैं? हर चीज़ का बहुत शुक्र है। मुझे कैद खाने से डाला, उसी हालत में तो ये भी तो कह सकता, पता है मैं 8 साल कैद खाने में रहा हूँ, मैंने इतने साल कैद काटी नहीं, शुक्र है मैं निकल गया। इतने साल मैं आपसे जुदा रहा हूँ, नहीं, शुक्र है मैं आपसे मिल गया। ये इंसान का रवैया और सोच का तरीका है जो उसको शाकिर बनाता है। हालात नहीं होते, एक ही हालत में शुक्रगुजार
इंतजार भी होता है और एक ही हालत में इतना शुक्र नहीं होता है। आप लोगों को सहरा से मुझे लाकर मिलाया, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका। भाइयों के दरमियान, बहन के रिश्तों के दरमियान फसाद कौन डालता है? शैतान, या शैतान के चेले, या शैतान के साथी। तो आपस में फितने और फसाद से बचने के लिए, रहम के रिश्तों को कटने से बचने के लिए फिर कसरत से क्या करना चाहिए? आउज़ुबिल्लाह, रब्बी आउज़ुबिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, सूरह नास, सूरह फलक, और शैतान का बताया अपना नुस्खा आयतल कुर्सी। बात यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी नसीहत पूरी करता है। अब आपने जो गुट्टी में डाली थी ना तरबियत, अब वो नहीं करते थे। क्या कहा था? ये सारी रुदात में पता है भाइयों, मेरे वालिद, मेरे माँ, बहन, भाइयों, मेरे लिए सबसे बड़ा असासा क्या है? मुझे पता खाना तेरा कौन है? अलीम हकीम है। अब इस अलीम और हकीम रब से फिर दुआ, अल्लाह तूने तो मुझे बहुत ही हुकूमत बख्शी है, मुझे तूने बातों की तह तक पहुँचना सिखाया है। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, दुआ करने से पहले क्या हो रहा है? नेमतों का इकराम, अल्लाह की हमद, अल्लाह की बाकी, अल्लाह की बड़ाई, और फिर उसके बाद दुआ। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। और दुआ भी कैसी है? दुनिया नहीं मांग रहे, दुनिया में नेमतों का शुक्र है, आखिरत की दुआएं मांग रहे हैं। मेरा ब्याह करना, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुझे मुस्लिम बहुत करना। ये वही है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को क्या ताकीद की थी? वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत हरगिज़ ना आए इस हालत में कि तुम मुस्लिम। इस चीज़ की दुआ करनी, मेरा खात्मा इस्लाम पर करना, और अंजाम कार मेरा स्वालिहीन के साथ मिला दे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं। जवाब दिया गया था ना, तो मुशरिकीन को बताया गया कि नाउज़ुबिल्लाह, आपने खुद खड़ा नहीं है, आपने यहूद और नसारा से सीखा नहीं है, वही के ज़रिए, वरना तो उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी। मगर तुम वाक़ई इब्तिदाई चाहों में से अक्सर लोग मान के देने वाले नहीं हैं, हालांकि तुम इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत नहीं मांगते हो। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब इस नसीहत को मान के इससे लाभ दहानी कबूल करने वालों को खुशनसीब बनाते हैं, और अल्लाह इस नसीहत के साथ याद दहानी अपने इलाके के गलियों ऊँचों इन बस्तियों में पहुँचाने वालों को खुशनसीब बनाते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।